Spain will be one of the top favorites to win that FIFA World Cup because Lamine Yamal 19 साल Lamine Yamal, so he'll prove to the world that he's back again after the injuries. सीधे बताता हूँ टॉप कौन फिनिश करेगा. बेलिंगम, फोर्डन, पाल्मर, केन, he is there. He is captain the side. Then बेलिंगम, दोस्तों लिख के ले लो. बेलिंगम का एक लेट विनर आ रहा है, एक क्रूशियल मैच at the end of the season, which again it's been reported by Fabrizio Romano. And for those who don't know, Fabrizio is a famous reporter in the Europe. Here it is, Messi! What's good, you guys? So it's a rare Sunday because it's a stuff I haven't been doing before on this channel, but I thought why not, let's give it a try, because today I'll be talking of football and especially of Lionel Messi. Few hours back, Parth was sitting alone in his hostel room, overthinking, lonely, tired of everything. A month ago, CSK lost in the most disastrous way possible, and nobody. खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर बेकरार है. खड़ा हूँ आज भी वहीं कि तेरा इंतजार है. छू जो मुझे. He made to himself to cover the FIFA World Cup on his channel, but his mind wasn't ready. His energy wasn't there. He needed something, someone. And then a plan formed, a big plan. He decided to call someone. Let's see who that someone was. Mr. Parth Guardiola, how are you? Hi boss, Hi. how are you? I'm just doing good. I hope everything is good at the setup right now. Feels सब good to be अच्छा है. here on your setup, boss. So I've got one assignment for you about the FIFA World Cup coverage. Assignment मिल गया ना? अभी time बॉस पे. आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, एंड ये मेरा प्रॉमिस है कि ये पूरी फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज मेरे साइड से एक 10 on 10 रहने वाली है. कोई Yeah, शक perfect. और कोई ग्लिच नहीं रहेगा मेरे साइड से. एंड आप सेफली एंड आप अपने वेकेशन एंजॉय करो. Sure. That's why I choose you, because the audience And it's deserve been better long coverage. 7 years you have given to this channel, Yeah, and yeah, it's yeah. time Been कि आप long एक 7 ब्रेक लो years. और वो Sure. इंजन का जो कंट्रोल है मेरे को लेने दो फॉर क्वाइट सम Apparently टाइम. the train is yours now. श्योर बॉस. Yeah. बाय बॉस. Bye. ऑल्सो Take बात care. बॉस, हाँ. ये मेरे को क्या डेली करना पड़ेगा क्या एनालिसिस? Yeah, daily. Try your best. अच्छा ओके बॉस. बाय बॉस. Bye. ओके. या व्हाट्स गुड. वन सेकेंड. ये तो पार्थ बोलता था ना, सो वी से समथिंग डिफरेंट. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है. वेल या, माय नेम इज पार्थ ग्वार्डियोला. Temporary football expert, full-time confidence merchant, part-time tactical genius, and right now serving as the emergency replacement for Parth. एक्चुअली क्या है ना, अभी मेरी पार्थ से वीडियो कॉल पे बात हो रही थी. पार्थ करंटली अनअवेलेबल है. लास्ट कुछ महीनों से उसकी लाइफ में उसको इनफ कैरेक्टर डेवलपमेंट दे दिया है, इसलिए फीफा वर्ल्ड कप कवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है. After years of discussing, will Dhoni retire, will Dhoni not retire, will Dhoni retire and then not retire, his brain has officially requested a leave. So पार्थ एक लीव पे जा चुका है, एंड मेंटली पार्थ अभी एक स्टेबल कंडीशन में नहीं है. वो सोशल मीडिया से गायब हो चुका है, एंड एवर सिंस 2022 वर्ल्ड कप ही वांटेड to cover the next FIFA World Cup, that is this 26th edition of FIFA World Cup, to be featured on his YouTube channel. So ये responsibilities मेरे को मिली है पार्थ ग्वार्डियोला को, and I hope कि मैं इसको एक फ्रूटफुल मैनर में यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा अपने साइड से. और एक ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा बैगेज आ गया है, बिकॉज बॉस ने बोला है कि मेरे को ट्राई करना है
हर गेम कवर करने के लिए डेली ट्राई करना है, एंड ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे साइड से, बट आई वुड ट्राई। एंड उससे पहले हम वीडियो को एनालाइज करें, टूर्नामेंट के साइड प्रोसीड करें, आई हैव वन डिस्क्लेमर फॉर यू ऑल। सुनना चाहोगे? लेट्स लिसन। So yeah, before the video, I would like to confess, for 95% of the year, my entire personality is CSK. My YouTube is CSK, my Instagram is CSK, my recommended feed is CSK, my weekly mood depends on CSK. And suddenly, today, I have decided to predict the FIFA World Cup. The confidence is there, the knowledge is negotiable. To all the football fans watching, please be patient, because मेरा brain अभी भी process करने का try कर रहा है to figure out whether a group stage is the football version of the IPL league stage, and whether Argentina qualifying feels the same as CSK qualifying in the top 4 of the IPL. Because the FIFA World Cup comes only once in 4 years, and my inner feed football fan wakes up only during the time of Football World Cup or Euros. So, a few important things before we proceed. This prediction is not based on advanced tactics. They are not based on XG, possession, ball control, stats, heat maps, or whatever football Twitter argues about. They are based on gut feeling, some tukkebazi, and some of those out emotions. To all the football experts watching this video, please lower your expectations. And our most important part, do not trust these predictions. I repeat, do not trust these predictions. Trust them as much as you trust your ex when she said, I will never leave you. We will be together forever. I can't live without you. If these predictions go horribly wrong, don't worry. I'll be back to discussing CSK in quite few months, like this whole football expert phase never happened. That's it. Go on and enjoy the video. Okay, so we have this fixtures in front of us. The first group, Group A. Group A में हमारे पास teams है Mexico, Czech Republic, South Africa, and South Korea. So see, Mexico is gonna top this group easily. Because see, their preparations for this World Cup has been insane. A lot of teams has not played that much of our international games जितने मेक्सिको ने खेले इस वर्ल्ड कप के पहले. They have played Germany, they have played France. So their preparations for this World Cup have been excellent, and वो एक advantageous factor रहेगा मेक्सिको को. And again, जो टॉप करेंगे, then second पे अगर आप देखो तो मैं रखूँगा साउथ कोरिया को. Because see, साउथ कोरिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टीम रही है. अगर आप देखो साउथ कोरिया के पास जो प्लेयर्स हैं, सॉन्ग यूनमिन, मे बी द लास्ट वर्ल्ड कप फॉर हिम, एक लास्ट डांस करना चाहेंगे सॉन्ग यूनमिन. एंड एक क्रिएटिविटी, अच्छा टैक्टिक्स में ये लोग प्रोसीड करते हैं, जहाँ पे इन पे स्टार पावर प्लेयर्स पे काफ़ी डिपेंडेंसी रहेगी अगर आप देखो. देन यू हैव चेक रिपब्लिक. चेक रिपब्लिक अगर आप देखो सेट पीसेस में काफ़ी अच्छा कंट्रोल बना के रखते हैं. दे हैव अ गुड मैनेजर जो जाना चाहता है कि वो ग्रुप स्टेजेस काफ़ी इजीली निकाल लेता है, तो वो एक उनके पास ब्रेक थ्रू रहेगा उस मैनेजर के वहाँ पे इंक्लूजन के होते हुए. देन चेक रिपब्लिक विल बी 3, एंड फोर्थ आई विल बी गोइंग विद साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका माइट स्टार्ट एज अ अंडरडॉग इन दिस वर्ल्ड कप, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ people would be taking in South Africa as a big favorites to even win this group actually. So South Africa maybe having that composure, having that history with the football World Cup, that Shabalala thing. 2009 में भी जब हमने देखा था कि मेक्सिको और साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप का गेम किक ऑफ किया था, यहाँ पे भी सेम थिंग होने वाली है. साउथ अफ्रीका में वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगी, बट अगेन साउथ अफ्रीका हैज़ दैट फ्री स्टाइल, हैज़ दैट एक्साइटिंग टीम. सो मे बी दे कुड एक्चुअली अपसेट Czech Republic और साउथ कोरिया ऑन सम गिवन डे, बट स्टिल आई विल बी गोइंग साउथ अफ्रीका एट फोर्थ. सो ये मेरा ग्रुप ए है. मेक्सिको टॉपिंग द ग्रुप, सेकंड विल बी साउथ कोरिया, थर्ड विल बी चेक रिपब्लिक. अगेन सेकंड के लिए बहुत टफ कंपटीशन हो सकता है चेक रिपब्लिक और साउथ कोरिया में, बट अगेन चेक रिपब्लिक विल बी थर्ड, फोर्थ विल बी साउथ अफ्रीका. Then we have Group B. We have Bosnia, Qatar, Canada, Switzerland, and if you see on paper पे दिखता है कि हमको Canada is outright favorites to top this group, but with World Cup it's never that predictable easy.
सो सी मेरे ख्याल से कनाडा का अगर स्क्वाड हम देखें, दे हैव गॉट जोनाथन डेविड, दे हैव अल्फोंसो डेविस हु प्लेज फॉर बायर्न म्यूनिक, सो बायर्न म्यूनिक का वो जो एडवांटेजेस फैक्टर रहेगा और जो एक्सपोजर रहेगा वो काफी हेल्प करने वाला है कनाडा को यहाँ पे, बिकॉज ऑल्सो ही विल बी कैप्टन द साइड एज वेल. देन दे हैव गॉट जोनाथन डेविड एज वेल, द ऑल टाइम हाईएस्ट स्कोरर फॉर कनाडा इंटरनेशनल फुटबॉल टीम. सो आई थिंक काउंटर प्रेस में काफ़ी अच्छी है कनाडा की टीम, बट अगेन डिफेंस में कभी कभी लैक कर सकती है. एंड द क्रिएटिविटी दे दीज पेपर प्लेयर्स ऑफर्स इन द मिडफील्ड इज क्वाइट सम अमेजिंग एक्चुअली. देन ऑल्सो सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर वुड बी फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर हम देखें तो कनाडा को जो एक फैक्टर मिलने वाला है, अगेन ये एक होस्ट नेशन भी है, बिकॉज होस्ट नेशन में अगर हम देखें मैक्सिको, कनाडा, यूएसए, तो कनाडा के पास वो एक एडवांटेज रहेगा. अगर आप देखो अराउंड 5-6 मैचेस कनाडा में भी होने हैं, तो एक टेरेन का एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज रहेगा. ऑल्सो द फैक्ट हाउ द प्लेयर्स आर यूज टू द एनवायरमेंट दे हैव बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड एंड हाउ दे आर एक्लिमेटाइज द कंडीशंस थ्रू ऑल द सर्फेसेस दे विल बी प्लेइंग इन. तो कनाडा के पास डेफिनेटली वो एक एडेड एडवांटेज रहने वाला है. सो आई विल बी गोइंग विद कनाडा टॉपिंग दिस ग्रुप. सेकेंड आई फील स्विट्जरलैंड, बिकॉज स्विट्जरलैंड के पास भी वो एक अटैकिंग माइंडसेट वाले प्लेयर्स हैं. देन थर्ड आई थिंक वुड बी कतर. आई नो कतर इज नॉट एबल टू एक्सलरेट दैट मच इन अ गुड मैनर, जहाँ पे हमने देखा अभी इंटरनेशनल गेम्स में कतर ने काफ़ी गोल्स कंसीड किए हैं, बट मेरे ख्याल से कतर विल स्टिल बी एबल टू प्रोसीड इन अ मैनरफुल वे. थर्ड पोजीशन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं. मैं जानता हूँ काफ़ी सारे एनालिस्ट हैं जहाँ पे वो कतर को काफ़ी डाउन रेट कर रहे हैं, बट स्टिल आई बिलीव कतर यहाँ पे अपस्किल करेगी, वो थर्ड पोजीशन के लिए आ सकती है. बॉस्निया अगेन फोर्थ पोजीशन पे फिनिश करेगी. इसलिए मेरा प्रेडिक्शन है फॉर द ग्रुप बी. सो मूविंग टू ग्रुप सी, दे हैव गॉट मोरक्को, हैती, ब्राजील, स्कॉटलैंड. ना 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 ना, सच अ डेडली ग्रुप. आई मीन ये जो वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप्स इन द पूरे वर्ल्ड कप में, और आई मीन जो ये मैचेस हमको दिखाने वाले हैं, वाओ, इट वुड बी अ ट्रीट टू वॉच इस ग्रुप के मैचेस. और टॉकिंग ऑफ ब्राजील, ब्राजील ब्राजील आई मीन ब्राजील के लिए सब एक्साइटेड एंड कार्लो अंसलोटी विल बी कोचिंग देम. रियल मैड्रिड के सेटअप से कार्लो इज कमिंग हियर एंड बहुत सारे टॉक्स थे टाउन में कि विल ही बी साइनिंग नेमार, विल ही बी टेकिंग अप नेमार. काफी सारे लोग प्लेयर्स एक्साइटेड थे, और जब नेमार का कॉल अप आया तो हम सब खुश थे, बिकॉज वी ऑल लव नेमार, राइट. एंड हम चाहते हैं कि नेमार अपनी स्टोरी को फिनिश करे, बिकॉज नेमार के साथ एक कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे इतने सालों से हम देख रहे हैं वो हर मैचेस में इंजर्ड हो जाता है, कुछ ना कुछ टैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाती है नेमार में. बट स्टिल नेमार को एंसेलोटी ने सिलेक्ट किया, वी ऑल वर हैप्पी. सो नेमार विल बी प्लेइंग. मे बी फर्स्ट 2-3 मैचेस वो मिस कर सकता है, बट आई हैव हर्ड. बट अगेन नेमार का स्क्वाड में होना ही इज सच काइंड ऑफ अ सेटिस्फैक्शन फॉर ऑल फैंस, बिकॉज हम चाहते हैं कि नेमार अच्छा करे. हम चाहते हैं नेमार वो अपने पोटेंशियल के लिए पोटेंशियल के हिसाब से अपस्किल हो और वहाँ पे ऊपर आके वो वर्ल्ड कप जीते, बिकॉज नेमार ने वर्ल्ड कप कभी जीता नहीं. ब्राजील को हम देखें, ब्राजील हैव वन 5 वर्ल्ड कप्स इन दोज टाइम्स जब वहाँ पे पेपे खेला करता था. So it would be a kind of a new thing. So they have got Vinny Junior, they have got Rodrigo. So एक प्लेयर्स हैं जो नाइटमेयर दे सकते हैं डिफेंडर्स को. एंड वीकनेस कभी कभी ये हो सकती है कि डिफेंस लाइन में कभी टीम लैक कर सकती है, बट अगेन उनको बड़े गेम्स का प्रेशर सोक इन करना आता है. दे हैव गॉट कार्लो द बॉस नाउ विद देम. एंड सो कार्लो अंसलोटी का जो टैक्टिकल ब्रेन है, जो रियल मैड्रिड में उसने अचीवमेंट एक्सेल करी इतने सालों में, यूसीएल दिलाया रियल मैड्रिड को. सो वो काफी कुछ बेनिफिशियल फैक्टर प्ले करने वाला है ब्राजील के लिए यहाँ पे, with the coming of Carlo Ancelotti in the Brazil team. सो एंड एक इनको यार एक सेटबैक ब्लो रहा यहाँ पे रिसेंटली, जब उनका एक राइट बैक वेस्ली आउट हो गया वर्ल्ड कप से. बिकॉज अगर हम देखें फ्रेंडलीज में वो सारे मैचेस में स्टार्ट कर रहा था, 20 गोल उसने मार के रखे थे, बट अगेन वो बाहर होता है. सो एक ब्लो है. बट अगेन ब्राजील हैव गॉट एंड्रिक एज वेल, काफी यंग टैलेंट है. एंड्रिक छोटा है एंड ही वुड बी अ थिंग टू वॉच आउट फॉर दिस पूरे वर्ल्ड कप में. आई विल टेल यू 2 प्लेयर्स फ्रॉम ब्राजील टीम एंड हु हैव गॉट दैट पोटेंशियल, जिनका ये पूरा वर्ल्ड कप बैंगर होने वाला है. वन इज ईगोर थियोगा एंड ब्रेडफोर्ड के लिए खेलता है, 15-20 गोल मार के आ रहा है. एंड कार्लो अंसलोटी लव्स हिम, the whole of Brazil loves him. and the narrative set हो रहा है वो ये हो रहा है कि ईगोर थियोगा सारा गेम स्टार्ट करेगा और वो एक ब्रेक थ्रू भी प्रोवाइड करेगा ब्राजील टीम को. देन दे हैव गॉट वन मोर प्लेयर विच इज कॉल्ड
पकेटा, लूकास पकेटा विल बी अ थिंग टू वॉच आउट फॉर इन दिस पूरे ब्राजील की टीम में। आई नो यूरोपियन फुटबॉल में इतना कुछ अचीव कर नहीं पाया वो, लेकिन स्टिल ब्राजील को काफी हेल्प मिल सकती है लूकास पकेटा के आने से। मे बी ऑफ द बेंच स्टार्ट करेगा, बट अगेन वो क्रूशल टाइम्स प्रोवाइड कर सकता है अपना टैक्टिकल माइंडसेट के थ्रू। एंड देन दे ऑल्सो, सो मे बी इजिली ब्राजील टॉप करेगा ग्रुप। देन आई थिंक मोरक्को इज देयर। मोरक्को को हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। वी ऑल्सो व्हाट हैपेंड इन द 2022 फीफा वर्ल्ड कप, मोरक्को वेंट ऑन टू रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप, जहां पे उन्होंने शायद किसके साथ खेला था, उन्होंने किसी बड़ी टीम को एलिमिनेट किया था, पोर्चुगल को एलिमिनेट किया था। रोनाल्डो का ड्रीम वहां पे शैटर्ड हुआ था। सो मोरक्को को हम बिल्कुल लाइटली लेंगे नहीं इस बार। मोरक्को डेफिनेटली आगे तक प्रोसीड करेगी, सेकंड फिनिश करेगी मेरे अकॉर्डिंग। दे हैव गॉट अशरफ हकीमी। अशरफ हकीमी इज जस्ट कमिंग विद द अमेजिंग कैंपेन ऑफ पीएसजी, जहां पे पीएसजी ने यूसीएल जीता, अपना सेकंड पीट किया वहां पे। So Morocco will be again favorites to top this second position, एंड थर्ड हम जाएंगे स्कॉटलैंड के लिए। मे बी वो एक फाइट हो सकती है सेकंड पोजीशन के लिए स्कॉटलैंड और मोरक्को में, बट अगेन मैं एडवांटेज दूंगा मोरक्को को बिकॉज ऑफ द क्रिएटिविटी, बिकॉज ऑफ द डिफेंस जो उनके पास है, बिकॉज डिफेंसिवली बहुत अच्छे से काउंटर करते हैं। डेंजरस टीम है यहाँ पे वहाँ पे ये, बट मेरी पोजीशन में क्रिएटिविटी लैक कर सकते हैं। बट अगेन मोरक्को सेकंड पे जाएगी। थर्ड आप ले लो स्कॉटलैंड को। स्कॉटलैंड भी अच्छी टीम है ऑन पेपर। देन फोर्थ इज हाइटी। Then we have got Group D. Group D में the teams which we have is Paraguay, Australia, USA and Turkey. So अगर हम देखें टर्की को, टर्की एक्साइटिंग टीम है, काफ़ी सारे यंग प्लेयर्स हैं, बॉल अडेप्टेबिलिटी इनकी एक स्ट्रेंथ है। एंड ऑब्वियसली द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इज आर्दा गुलर। आर्दा गुलर विल बी हैविंग अ बैंगर ऑफ अ वर्ल्ड कप और विल बी वन ऑफ दोज स्ट्राइकर्स हु विल बी एसोसिएटिंग व्हेन द एंड ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप, जो जिन्होंने बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है फीफा वर्ल्ड कप में। सो आर्दा गुलर विल बी डेफिनेटली अ थिंग टू वॉच आउट फॉर। एक ऐसा प्रोडिजी है वो। सो मैं रखूंगा टर्की को नंबर 1 पे इस ग्रुप में। देन वी सी यूएसए। मैं यूएसए को रखूंगा सेकंड पे, बिकॉज सी यूएसए को, आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट लाइक यूएसए, बट यू हैव टू एडमिट द फैक्ट दे हैव बीन प्लेइंग टफ टीम्स इन द फ्रेंडलीज ऑफ द वर्ल्ड कप, जहाँ पे हमने देखा यूएसए ने खेला जर्मनी को, ऑलमोस्ट जर्मनी को हरा दिया था, पोर्चुगल को खेला उन्होंने। सो दे हैव बीन प्लेइंग टफ गेम्स। उनकी प्रिपरेशंस काफ़ी प्रिपरेटरी वेल रह रही है, काफ़ी एडवांस्ड ब्रेक थ्रू में एंड कर रही है। सो यूएसए को डेफिनेटली एडवांटेज रहेगा वहाँ पे बिकॉज ऑफ द टीम्स दे हैव प्लेड फ्रेंडलीज में जस्ट अभी वर्ल्ड कप के पहले। तो यूएसए सेकंड में रखूंगा। थर्ड विल बी ऑस्ट्रेलिया। अगेन ऑस्ट्रेलिया हैव दैट फ्रीकिंग नेवर टू गिव अप माइंडसेट। हमने क्रिकेट में देखते हैं सेम। ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल में इतना डोमिनेट या अपस्किल नहीं कर पाती, बट अगेन मैं ऑस्ट्रेलिया को काउंट आउट नहीं करूंगा। सेकंड भी आ सकती है ऑस्ट्रेलिया, बट अगेन बिकॉज ऑफ द फैक्ट यूएसए के पास पोचेटिनो है, अगेन ऑफ द फैक्ट कि पोचेटिनो वाज द सेम कोच जो पीएसजी को कोच करता था जब मेसी, नेमार और एम्बापे खेलते थे पीएसजी में। सो पोचेटिनो का वो एक जो टैक्टिकल ब्रेन है, जो अडेप्टेबिलिटी कराने का एक जो वे है, जो प्लेयर्स को वो निकाल के लाता है, जो प्लेयर्स से वो अपना बेस्ट निकलवा लेता है, वो डेफिनेटली एक हेल्प करने वाला है यूएसए टीम को। सो पोचेटिनो इज देयर। सो पोचेटिनो यूएसए को मे बी टॉप भी करवा दे, यू नेवर नो, बट स्टिल मैं टर्की को ज़्यादा फेवरेट्स रखता हूँ टू टॉप दिस ग्रुप। देन सेकंड इज यूएसए, थर्ड इज ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ इज पैराग्वे। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो मूविंग टू ग्रुप ई। ग्रुप ई में हमारे पास है कुराकाओ, आइवरी कोस्ट, जर्मनी, इक्वाडोर। सो इजीली है, काफ़ी इजी है। जर्मनी आर द हॉट फेवरेट्स टू टॉप दिस ग्रुप। एंड जर्मनी के बारे में अगर हम बात करें, Germany is a team to watch out for इस पूरे वर्ल्ड कप में and the players they have got. Especially I will tell you one player and you have to keep your eyes on him. He is Joshua Kimmich and if Germany team have to go deeper into this tournament, Kimmich का अच्छा परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जर्मनी टीम के लिए बिकॉज द अमाउंट ऑफ सॉलिडिटी, द अमाउंट ऑफ विजन, द अमाउंट ऑफ पोजेशन Kimmich लाता है फील्ड में, इट इज ट्रिमेंडस। और जर्मनी को एक वो बहुत अपर हैंड प्रोवाइड कर देता है Kimmich। सो Kimmich का ये वर्ल्ड कप बहुत अच्छा जाने वाला है एंड डोंट बी सरप्राइज अगर Kimmich को गोल्डन बॉल मिल जाता है। सो Kimmich का ये वर्ल्ड कप अगेन अच्छा जाएगा। एंड Kimmich के साथ अगर मैं देखूं, दे हैव गॉट जमाल मूसियाला, दे हैव गॉट फ्लोरियन विर्ट्ज एंड जमाल मूसियाला इज वन ऑफ माय फेवरेट यंग प्लेयर्स आउट देयर एंड फ्लोरियन विर्ट्ज इज आल्सो गुड। लिवरपूल के लिए खेलता है, मूसियाला बायर्न म्यूनिख के लिए खेलता है। तो अगर आप देखो जो सारे प्लेयर्स इनके पास जर्मनी के पास हैं, सारे टॉप टीम्स में टॉप टीम्स के लिए खेलते हैं यूरोप फुटबॉल में। मूसियाला खेलता है बायर्न के लिए, देन यू हैव गॉट Kimmich who plays for Bayern Munich and they've got Ritz who plays for Leverkusen
So they've got ample of options. They've also got Schlotterbeck. Schlotterbeck काफी अच्छा बॉल कंट्रोल प्रोवाइड कर सकता है ऑफ द बेंच आके. तो जर्मनी की टीम डेफिनेटली टॉप करेगी ग्रुप. एंड जूगन नागलसमैन अगेन एक अच्छा काम एंड कंपोज रहने वाला कोच है, तो अच्छा गेम निकलवा सकता है अपने बॉयज से. सेकंड में रखूंगा मे बी इक्वाडोर को. इक्वाडोर और मे बी सेकंड या सेकंड हम इक्वाडोर को रखते हैं बिकॉज इक्वाडोर के पास वो एक डिफेंस लाइन कंट्रोल करने की एक अडेप्टेबिलिटी रहती है और ड्रॉस काफ़ी अच्छा निकालती है इक्वाडोर. और अगर जो पहला गेम ही इस पूरे वर्ल्ड कप का है, मतलब इस ग्रुप का है, वो है इक्वाडोर और आइवरी कोस्ट के बीच. अगर आइवरी कोस्ट वो मैच जीत जाती तो देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी आइवरी कोस्ट एक ग्रुप टॉप कर जाए, तो आप सरप्राइज मत होना. सो काफ़ी सारे टेंजिबिलिटीज ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पे अगर वो आइवरी कोस्ट जीत जाती है मैच. एंड देन इक्वाडोर फिर अगला मैच पूरा काउ से हार जाती है, तो फिर एक चांस ये भी बनता है कि जर्मनी सेकंड आ जाए इस ग्रुप में. बट स्टिल मैं अपने विजन के साथ जाऊंगा. आई विल से जर्मनी विल टॉप दिस ग्रुप एंड देन दे हैव इक्वाडोर. इक्वाडोर विल बी गोइंग इन सेकंड. थर्ड विल बी मे बी यू कुड से आइवरी कोस्ट. थर्ड आइवरी कोस्ट को रखते हैं एंड फोर्थ विल बी कुराकाओ. ओके, सो ग्रुप एफ में हमारे पास है तुनिशिया, जापान, स्वीडन और नीदरलैंड. नॉट अ लॉट ऑफ पीपल रियलाइज हाउ क्लोज ऑफ अ ग्रुप दिस इज. अगेन जापान और नेदरलैंड्स काफ़ी क्लोज टीम्स हैं जो टॉप वन के लिए कंटेंडर्स रहेंगी. और नेदरलैंड्स ऑल्सो बहुत सारे लोग मानते हैं इज वन ऑफ द हॉट फेवरेट्स टू विन दिस फीफा वर्ल्ड कप एज अ डार्क हॉर्स बिकॉज द प्लेयर्स दे हैव गॉट डिजानी, दे हैव गॉट फ्रैंकी डी योंग, दे हैव गॉट वर्जिल वैन जाइक इन द मिडफील्ड, दे हैव गॉट ग्रामेनबर्ग्स एज वेल. सो नेदरलैंड जो टीम है वो पिछले वर्ल्ड कप में भी उन्होंने एक मेरिकल पुल आउट किया था अर्जेंटीना के अगेंस्ट, जहाँ पे ऑलमोस्ट अर्जेंटीना को वो हराने वाली थी. देन वो मैच पेनल्टीज में गया था. देन वहाँ पे अर्जेंटीना ने समा वो मैच जीता बिकॉज ऑफ द ब्रिलियंस ऑफ लियोनेल मेसी. सो यहाँ पे नेदरलैंड्स इज अगेन अ टॉप टीम. बट जापान को अगर आप देखो, जापान इज नोन फॉर गिविंग अप अपसेट्स इन द बिग मैचेस इन द वर्ल्ड कप्स. सो मे बी दे कुड स्टिल पुल आउट अ बिग अपसेट इन दिस फीफा वर्ल्ड कप वेयर दे बीट एक्चुअली नेदरलैंड्स अपने ग्रुप में. बट स्टिल आई वुड बी गोइंग विद नेदरलैंड्स टू टॉप दिस ग्रुप. सो मैं नेदरलैंड्स को 1 पे रखूंगा, देन जापान को 2nd पे रखूंगा, देन यू कैन पुट स्वीडन एट 3 बिकॉज स्वीडन के पास भी कोई अच्छे वो ब्रिलियंट प्लेयर्स हैं जहाँ पे वो गेट अवे प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड बट ईजी है, 1 और 2 ईजी है. 3rd पे स्वीडन रख लो, 4th पे दे हैव गॉट टुनीशिया. देन वी हैव ग्रुप जी जहाँ पे हमारे पास इजिप्ट, ईरान, बेल्जियम और न्यूजीलैंड है. And this is not the Belgium we used to see, who used to make terrific comebacks, जो प्रोसीड करती थी टूर्नामेंट्स में काफ़ी आगे तक, और वो एक पास्ट की हिस्ट्री रह चुकी है. आई नो उनके पास डेविन ब्रोना भी है, बट डेविन ब्रोना इज नॉट एट हिज पीक राइट नाउ. वो पीक 2-3 साल पहले खत्म हो गई है. आई बिलीव अगेन विद द स्किल्स डेविन ब्रोना ऑफर्स ऑन द टेबल, इट वुड बी अमेजिंग अगर वो अपने प्राइम में वापस आ जाए वर्ल्ड कप में और बेल्जियम को आगे तक ले जाए टूर्नामेंट में. वो हो सकता है एक्चुअली because then see Belgium के पास they also got this one Courtois who plays for Real Madrid as a top goalkeeper, and with Courtois back in it feels like having 2 extra defenders in the goal line. So Courtois का होना वहाँ पे definitely एक advantageous factor play करेगा बेल्जियम टीम के लिए. और द प्लेयर्स जिनके साथ बेल्जियम पहले बहुत आगे तक जाया करती थी, दे आर ओल्ड नाउ. इफ यू सी विट्स, लुकाकू, दे मोस्टली कम ऑफ द बेंच. सो इतना वो प्रोसीड नहीं करवा पाएंगे ब्राज़ील को आने वाले टूर्नामेंट्स में अगर ये आगे तक जाती बेल्जियम की टीम. So Belgium, but still I would counter with Belgium को 1 पे. Then 2nd पे I will put Egypt. If you many people would actually counter me in this thing because अगर आप देखो भी कि ईरान जो टीम है in most of the sections वो इजिप्ट से बेटर है in ball control, in possession, in creativity they offers. और जो प्लेयर्स ईरान के पास हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है इजिप्ट से. और बट स्टिल मैं अगर आप पूछो मैं क्यों रख रहा हूँ इजिप्ट को 2nd पे, एक फैक्टर है इसका. सी ईरान इस फीफा वर्ल्ड कप में आ रही, वो तो बहुत बड़ी वर्ल्ड कप, एक बहुत बड़ी बात है एक्चुअली. जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहा था ये चीज़, तो दे वर एक्चुअली सरप्राइज कि भाई हाउ इज ईरान प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप बिकॉज ऑल द जियो पॉलिटिकल थिंग्स जो अभी हो रही है यूएसए और ईरान के बीच. तो ईरान के पास एक्चुअली इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक कंडीशन रखी गई है फीफा वर्ल्ड कप में कि आप आओ यूएसए में बिकॉज मैचेस हो रहे हैं, आप यूएसए में आओ, मैचेस खेलो, और जैसे आपका मैचेस खत्म होते हैं आप वापस अपनी कंट्री वापस फ्लाई आउट कर जाओ. सो आई मीन डैम,
तो आप देखो ना कि जैसे ही ईरान के मैचेस खत्म हो रहे हैं, सडनली दे हैव आस्क्ड टू लीव द कंट्री यूएसए, और वो उनको बोला जा रहा है कि आप अपनी हमारी कंट्री से बाहर जाओ, एंड देन जब भी नेक्स्ट मैच आता है देन यू हैव टू कम बैक। सो ये जो स्विच हो रहा है ना कंट्री टू कंट्री आउट, ये काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है एट टाइम्स। वो प्लेयर्स के बीच एक एग्जॉशन का फैक्टर प्ले आउट कर सकता है। सो आई बिलीव ईरान अगर उसको एक्सेल करती है तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। बहुत सरप्राइज हूंगा मैं अगर ईरान सेकंड आ जाती है इस ग्रुप में विद द प्रॉब्लम्स दे हैव बीन ऑफर्ड विद, बिकॉज इतना ज़्यादा फटीक जो उनके प्लेयर्स में आने वाला है कि आप हर बार गेम के बाद ट्रैवल करोगे ईरान में, जब आपका गेम दोबारा आने वाला होगा आप दोबारा यूएसए आओगे, तो इतना ट्रैवल फ्रीक्वेंट करना डेफिनेटली फटीक प्रोवाइड कर सकता है प्लेयर्स में। बट अगेन अगर वो इसको अपस्किल कर लेते हैं, इसको पावर कर लेते हैं, सो आई विल बी सरप्राइज एंड सब लोग सरप्राइज होंगे। सो ईरान सेकंड आती है, दैट वुड बी अ वेरी शॉकिंग थिंग, बट स्टिल इसी जस्ट फॉर द फैक्ट कि ईरान को इतना ट्रैवल करना पड़ रहा है, बार बार गेम आउट गेम इन करने पड़ेगा, तो मैं ईरान को थर्ड रख रहा हूँ। एंड वी ऑल नो ईरान बेटर टीम है इजिप्ट से। स्टिल मैं इजिप्ट को सेकंड पे रखूंगा इसीलिए, देन थर्ड पे ईरान को रखूंगा, फोर्थ पे यू कैन पुट न्यूजीलैंड, बिकॉज न्यूजीलैंड को इतना गेम टाइम नहीं मिला रिसेंटली में। अगर आप देखो उन्होंने फ्रेंडलीज भी स्किप किए तो वो एक्सपोजर नहीं आ पाया है प्लेयर्स में। तो अगेन सो न्यूजीलैंड फोर पे आएगा। ओके, सो हम अब बढ़ते हैं ग्रुप एच की तरफ। ग्रुप एच में टीम विच वी हैव गॉट इज केपा वर्दे, सऊदी अरेबिया, स्पेन, यूरोगे। डेफिनेटली नो डाउट इन दैट स्पेन टॉप करेगा ये ग्रुप अगर आप देखो, बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स दे हैव गॉट वन ऑफ द जैम पैक्ड यंग प्लेयर्स फ्रॉम द वर्ल्ड आउट देयर इन देयर ड्रेसिंग रूम। दे हैव गॉट पेड्री, दे हैव गॉट डैनी ओल्मो, दे हैव गॉट फेरन टोरेस, दे हैव गॉट फर्मिन लोपेज और निको विलियम्स। सो उनकी जो पूरी मिडफील्ड की जो ट्रायो की टीम है वो काफ़ी एक ब्रेक थ्रू प्रोवाइड करेगी। और अगेन हु कुड एक्चुअली फॉरगेट लमीन यमाल। दे हैव गॉट लमीन यमाल, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आउट देयर इन द वर्ल्ड कप राइट नाउ। लमीन यमाल का कंट्रोल भी बहुत अच्छा रहेगा, एंड अगेन वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो इस पे आपकी आंखें रहने वाली है इस पूरे वर्ल्ड कप में, जिस बिकॉज लमीन इस वर्ल्ड कप को रन करेगा। जैसे हम वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल में बोलते हैं, वैसे लमीन इज वुड बी रनिंग दिस वर्ल्ड कप। और आई गेस लमीन का पहला वर्ल्ड कप भी है। मैंने अपने 2 साल पहले यूरोस की वीडियो में बात करी थी कि लमीन जब 2 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप होगा, लमीन वुड बी टर्निंग 19, और अब वो 19 होने वाला है जुलाई में, एंड ही विल बी प्लेइंग हिज फर्स्ट इनॉग्रल वर्ल्ड कप। सो लमीन के लिए स्पेशल वर्ल्ड कप रहने वाला है। अगेन डिपेंडेंसी रहेगी पेड्री पे, लमीन यमाल पे। फर्मिन लोपेज अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड है, बट दे हैव गॉट दो सेट पीसेस जहाँ पे वो अरेंज करके टैक्टिकल ब्रिलियंस निकलवा सकते हैं अपने प्लेयर्स से। एंड इसको तो आप बारसा 2.2 भी बोल सकते हैं, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स इनके बारसा वाले प्लेयर्स हैं। सो देन यूरोगे मेरे ख्याल से सेकेंड फिनिश करेगी। यूरोगे अगेन क्रिएटिविटी में काफ़ी अच्छी टीम है। दे हैव गॉट फेदे वालवर्दे, दे हैव गॉट निको पास। सो इनका भी एक अच्छा क्रिएटिविटी कॉम्बो रह सकता है यूरोगो की साइड से, और एक अच्छी ब्रिलियंस से ये लोग प्रोसीड करें फ्रेंडलीज में। सो सेकंड पे मैं यूरोगो को रखूंगा। थर्ड पे यू कुड आइदर गो विद सऊदी अरेबिया और केपा वर्दे। सो बट आई बिलीव सऊदी अरेबिया, बिकॉज वो एक होस्ट करती है इतने सारी लीग्स, एंड इसलिए मैं सऊदी अरेबिया की साइड जा रहा हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज अगर वर्ल्ड इतनी अच्छी लीग रन कर रहा है तो उनके प्लेयर्स को भी बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, एक बहुत अच्छा गेटवे प्रोवाइड किया गया होगा टू अपस्किल देम। सो इसलिए Saudi Arabia को I would put 3, 4 पे you have got Kepa Verde. Then moving to Group I. So Group I में हमारे पास है इराक, सेनेगल, फ्रांस, नॉर्वे। आई मीन ग्रुप ऑफ डेथ। और मैं बता रहा हूँ ये ग्रुप एक्सपेक्टेशंस पे लिव अप करने वाला है, बिकॉज जो हमको मैचेस देखने को मिलेंगे इस ग्रुप से, दैट वुड बी वर्थ वॉचिंग आई वुड से। और आधी रात को, बिकॉज सारे मैचेस तो आधी रात को होने हैं, तो आई डोंट नो कि मैं अपना स्लीप शेड्यूल कैसे बैलेंस आउट करूंगा। बट अगेन इफ यू सी फ्रांस, अगेन और फेवरेट्स टू टॉप दिस ग्रुप मैं फर्स्ट पे रखूंगा। और देखो फ्रांस पे द प्लेयर्स दे हैव गॉट, हर बार की तरह अगेन द फेवरेट्स टू विन दिस फीफा वर्ल्ड कप। लास्ट ईयर उन्होंने रनर अप फिनिश किया था 2018 वाला वर्ल्ड कप, दे वन इट विद दैट 18-year-old एम्बापे प्लेइंग अ क्रूशियल रोल दैट टाइम। एंड अब एम्बापे एक्सपीरियंस हो गया, 27 का एम्बापे है। आई स्टिल बिलीव एम्बापे ने अपने पोटेंशियल पे अभी तक इतना अचीव किया नहीं है जितना वो कर सकता था। बैलन डॉर इज स्टिल मिसिंग इन हिज कैबिनेट। सो मैं चाहता हूँ एम्बापे अच्छा करे, वन ऑफ माई फेवरेट्स प्लेयर राइट नाउ। अगर आप देखो फुटबॉल में, मैं चाहूंगा एम्बापे अच्छा करे। द पेस ही हैज, द बॉल कंट्रोल ही प्रोवाइड्स, द अमाउंट ऑफ creativity he offers on the ball field is amazing, and definitely is a nightmare for the opposition's team defenders.
फ्रांस को नंबर 1 पे रखूंगा. ऑल्सो दे हैव गॉट दिस प्लेयर माइकल ओलिसे फ्रॉम बायर्न म्यूनिक. ही विल बी प्लेइंग फॉर फ्रांस एंड वो आरबी एज आरबी खेलेगा. माइकल ओलिसे का इंक्लूडेड फैक्टर वहाँ पे काफी ब्रेक थ्रू फैक्टर प्ले करेगा फ्रांस के लिए. देन दे हैव गॉट चुआमेनी, कामाविंगा. दे हैव गॉट दिस प्लेयर, one more player they've got. I forgot that player's name, but they have got that big player. Benzema is not playing definitely. So Mbappe को अगर आप देखो, Mbappe will be a dangerous factor to look out for. And they have, और उनके पास डेम्बेले भी है. डेम्बेले ने लास्ट ईयर बैलन डॉर जीता था. अगेन इस साल भी बैलन डॉर जीत सकता है विद द PSG टीम विनिंग दिस लास्ट UCL एज वेल. सो डेम्बेले का इंक्लूडेड फैक्टर वहाँ पे एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल फैक्टर. They've got Ousmane Dembele as well in the trio midfield. And आप देखो डेम्बेले ने लास्ट ईयर बैलन डॉर जीता था. तो डेफिनेटली डेम्बेले विद ओवर द ईयर्स उसने अपने आप को अपग्रेड किया है. एंड नॉट इवन डेम्बेले, ये फ्रांस की टीम में इतनी ऐसी टीम है जहाँ पे हर पोजीशन पे उनके पास एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बैठा हुआ है. यू हैव गॉट दिस वन ग्रीजमान इज देयर. दे हैव गॉट गोकू. सो एवरी प्लेयर इन द अटैकिंग लाइन इज सेटल्ड एंड एम्बापे विल बी लीडिंग एंड विल बी ट्राइंग देम टू मेक दिस वर्ल्ड कप विन. France की टीम definitely would be a team to watch out for. Again, a clear favorite to win this FIFA World Cup this time. और France को नंबर 1 पे रखूंगा. सेकंड पे I would go with Norway because see नॉर्वे का फर्स्ट वर्ल्ड कप है, इनॉग्रल वर्ल्ड कप है. नॉट फॉर नॉर्वे बट ऑल्सो फॉर अर्लिंग हालैंड को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ मैं. मैनचेस्टर सिटी के लिए ही प्लेज इन एंड काफी एक्साइटिंग प्रोडिजी है. एंड नॉर्वे के लिए ही वुड बी ट्राइंग कि वो आगे तक उसको प्रोसीड करवा पाए नॉर्वे को, बिकॉज मैन सिटी में ही इज बीन डूइंग वंडर्स. और हालैंड को देखने के लिए डेफिनेटली एक्साइटेड हूँ बिकॉज जब लास्ट टाइम वर्ल्ड कप हुआ था तो हालैंड काफी डिसअपॉइंटेड था कि नॉर्वे क्वालिफाई नहीं कर पाए. बट बिकॉज दिस इज अ 48 टीम टूर्नामेंट, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी गई है. सारी जो टीम्स लास्ट टाइम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी उनको एक अपॉर्चुनिटी, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप यहाँ पे आओ वर्ल्ड कप में और अपना बेस्ट गेम निकाल के दिखाओ हमको. सो नॉर्वे इज वन ऑफ दोज टीम्स जहाँ पे उनको चांस मिला एंड डेफिनेटली आई फील नॉर्वे एक अच्छा गेम कर सकती है, सेकंड पे आ सकती है. And then third pay, I would go with maybe Senegal. Senegal you can go with at third. And then Senegal again, one of best South African nations जो फुटबॉल खेलती है. They've got Sadio Mane. उन्होंने शायद अभी अफ्रीकन कोई कप भी जीता था if I'm not wrong. So Sadio Mane plays for Senegal, एक अच्छा प्लेयर है. अल नसर के लिए रोनाल्डो के साथ खेलता है. सेट पीसेस में काफी अच्छी क्रिएटिविटी ऑफर करता है. तो सेनेगल सेकंड पे भी आ सकती है बट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर नॉर्वे के लिए अर्लिंग हालैंड खेलता है. सो आई एम पुटिंग माई बेट ऑन नॉर्वे. And third would be Senegal, and then fourth would be Iraq. Then we have got Algeria, Austria, Jordan, and Argentina in Group J. Lionel Messi's Argentina, the defending champions Argentina. क्या वो रिपीट कर सकते हैं? Do they still have that spark? Do they still got that squad जो वहाँ पे बाउंस बैक करा के यहाँ पे फिर से फीफा वर्ल्ड कप उनको ट्वाइस ना रोज जिता पाए? द लास्ट टाइम हमने देखा था काफी साल पहले ब्राजील ने कर रखा है, बट क्या मेसी की अर्जेंटीना कर सकती है या नहीं? दैट वुड बी अ थिंग टू वॉच आउट फॉर बिकॉज इवन एट दिस एज ऑफ लियोनेल मेसी ही स्टिल इज द फोकल पॉइंट फॉर होल इंटरनेशनल टीम ऑफ अर्जेंटीना बिकॉज ऑफ हिज विजन, प्ले मेकिंग, डेड बॉल एबिलिटीज ही ऑफर, and also with the amount of core support he has from his clinical forwards like Lautaro Martinez is there, a powerful and clinical striker for Inter Milan, and he's highly effective at pressing defenders and putting away crucial chances in the box. They've got Julian Alvarez as well जो एटलेटिको मैड्रिड के लिए खेलता है. एंड काफी सारे अभी रिसेंट में आर्गुमेंटेशंस चल रहे हैं जहाँ पे लिंक करा जा रहा है बारसा से, जहाँ लिंक करा जा रहा है रियल मैड्रिड से. आई डोंट नो कहाँ पे जाएगा वो, बट स्टिल अल्वारेज एक बहुत बड़ा प्लेयर है आने वाले टाइम के लिए. एंड ऑल्सो अगेन वन ऑफ टॉप प्लेयर्स जिसको हम इस वर्ल्ड कप में देखेंगे. अगेन जितने गोल मारने वाले में भी 7 या 8 गोल मार सकता है अल्वारेज. एंड मेसी के बाद अगर आप किसी को एसोसिएट करते हो अर्जेंटीना से, इज डेफिनेटली अल्वारेज एट द बिकॉज of the point of age he is right now. Clearly 4-5 साल easily देगा अपने पीक के अर्जेंटीना को. They have got Alvarez, so in that thing they have got Enzo Fernandez from Chelsea as well, and Fernandez is definitely a gifted central midfielder who plays for Chelsea. His passing range, his ability to pass the ball in various
contrast of the game aspect is definitely something to watch out for. So Enzo Fernandez will definitely would be a thing to watch out for. They've got Mac Allister from Liverpool. They have Rodrigo De Paul, often referred to as the personal bodyguard of Messi. So Rodrigo De Paul का भी inclusion काफी balance और factor रहने वाला है. They've got a good defense wall जहाँ पे टॉटनहम से वहाँ पे उनके लिए रोमारियो क्रिस्टन खेलता है. अगेन सेंटर बैक फायर्स एंड देव गॉट इमालियानो मार्टिनेज, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स लास्ट वर्ल्ड कप का, जहाँ पे उसने क्रेजी परफॉर्मेंस पुल आउट किया था. मेरे ख्याल से तो अलॉन्ग साइड मेसी वो मार्टिनेज ही था जिसने अर्जेंटीना को लास्ट टाइम का फीफा वर्ल्ड कप जितवाया था. तो मार्टिनेज विल बी अ थिंग टू वॉच आउट फॉर इन दिस वर्ल्ड कप अगेन. एंड जितने सारे वो गोल सेव करने वाला है वो आप देखने वाले हो इस वर्ल्ड कप में. सो अर्जेंटीना डेफिनेटली नंबर 1 पे रखूंगा. एंड सेकंड पे आप किसको रखोगे? सेकंड पे सेकंड पे काफ़ी टफ कंपटीशन रहेगा ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया में. बट स्टिल मैं ऑस्ट्रेलिया को सेकंड पे ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया में काफ़ी एक डिफरेंस और काफ़ी कंपटीशन रहने वाला है. बट स्टिल मैं जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया के साथ सेकंड पोजीशन पे. थर्ड पे वी हैव अल्जीरिया, नो प्रॉब्लम. देन वी हैव गॉट फोर्थ विद जॉर्डन. तो दैट सॉर्टेड विद दिस ग्रुप. मूविंग टू ग्रुप के. यहाँ पे हमारे पास है DR कोंगो, उज्बेकिस्तान, पोर्चुगल, कोलंबिया. तो पोर्चुगल के लिए इफ वी टॉक अबाउट पहले, तो पोर्चुगल के पास एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है जहाँ पे लोग बोल रहे हैं ये क्लियर हॉट फेवरेट्स हैं टू विन दिस फीफा वर्ल्ड कप विद द अमाउंट ऑफ टैलेंट दे हैव गॉट, विद द अमाउंट ऑफ टीम कॉम्पोजिशन दे हैव. एंड इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज अगर आप मेरे से पूछो तो ये वन ऑफ दोज पोर्चुगल का स्क्वाड है इस फीफा वर्ल्ड कप का जहाँ पे इतने सालों में पोर्चुगल के बाद जो स्क्वाड हुआ करता था दैट वाज नॉट कंपैरेटिवली दैट मच ऑफ अ गुड स्क्वाड जितना गुड स्क्वाड इस बार का फीफा वर्ल्ड कप वाला स्क्वाड है पोर्चुगल का. तो डेफिनेटली अगर आप उनके प्लेयर्स देखो, दे हैव गॉट ब्रूनो फर्नांडिस, दे हैव गॉट पेड्रो नेटो, दे हैव गॉट बर्नार्डो सिल्वा, and Nuno Mendes is there. So, and obviously in the attack line they have got Cristiano Ronaldo with this brilliance, and even at 41 Ronaldo is carrying Portugal. So that's a testament for every individual who look up to Ronaldo. Ronaldo will be stepping into the field with the aim and ambition to complete football, because हमने पिछले फीफा वर्ल्ड कप में देखा था जब रोनाल्डो रोते हुए वो डगआउट में जा रहा था जब मोरक्को ने अपसेट किया था पोर्चुगल को. So definitely Ronaldo will be aiming एंड वो जील रहेगा रोनाल्डो के पास टू कंप्लीट हिज स्टोरी. और वो एक फाइनल डांस एक एक बहुत बड़े हिस्टोरिक मैनर में रोनाल्डो खत्म करे फुटबॉल को, बिकॉज अगेन 1000 गोल से काफ़ी नियर है रोनाल्डो. एंड एक वर्ल्ड कप भी एक ऐसी ट्रॉफी है जो रोनाल्डो के कैबिनेट में मिस हो रही है राइट नाउ एट द मोमेंट. सो रोनाल्डो डेफिनेटली चाहेगा कि मैं उस फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी में अपने हैंड्स इन करूँ. एंड आप मुझसे पूछो, मैं डेफिनेटली अर्जेंटीना को सपोर्ट करता हूँ हमेशा. आई एम अ मेसी फैन, बट आई वुड बी हैप्पी, आई वुड बी रियली डिलाइटेड एक्चुअली कि रोनाल्डो अगर इफ रोनाल्डो इज एबल टू कैप्चर दैट फीफा वर्ल्ड कप दिस ईयर एंड टू फिनिश हिज आइकॉनिक करियर, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दोज फैन जो लड़ते रहते हैं पूरे टाइम कि रोनाल्डो मैसी कौन अच्छा है नहीं है. I'm always neutral, and Messi definitely has got to me. He is my favorite, but it's not like that कि मैं रोनाल्डो को hate करता हूँ. At the same time रोनाल्डो के लिए काफ़ी respect है with the hard work, with the zeal, and with the preparation, with the strategies, with the amount of conditioning he is doing even at this age. काफ़ी inspire करता है हम लोग को रोनाल्डो का ये attitude actually. बट सो मैं खुश हूँ अगर रोनाल्डो वर्ल्ड कप जीतता है. एंड आई विल बी सेइंग दैट आई वांट पोर्चुगल टू विन दिस वर्ल्ड कप एक्चुअली, बिकॉज अर्जेंटीना डेफिनेटली अगर आगे बढ़ती जीतती वर्ल्ड कप मेसी के लिए खुश होऊंगा, बट अगर नहीं भी करती तो मैं रोनाल्डो के लिए काफ़ी हैप्पी रहूँगा, काफ़ी एक डिलाइटफुल मैनर में सपोर्ट करूँगा रोनाल्डो को. सो रोनाल्डो की टीम पोर्चुगल, दे हैव गॉट दैट स्क्वाड, दे हैव गॉट दैट डेप्थ, दे हैव गॉट दैट पावर जहाँ पे पोर्चुगल कैन डेफिनेटली एक्सेल. एंड हमको दिख सकता है कि 2026 would be that year जो सिम्पसन्स ने एक्चुअली प्रेडिक्ट किया था अपने एपिसोड में 90s में, जहाँ पे उन्होंने दिखाया था मैक्सिको और पोर्चुगल का 2026 का फीफा वर्ल्ड कप फाइनल होगा.
So we'll wait. कि Ronaldo be able to capture his hands on the FIFA World Cup trophy? So Portugal will be topping this group, no doubt. Colombia again, creativity, solidity provide करती है. They have got Luis Diaz, they have got James Rodriguez, काफी सारे अच्छे प्लेयर्स उनके पास भी हैं एंड टफ कंपटीशन प्रोवाइड करेगी. और एक और चीज, सरप्राइज मत होना कि अगर कोलंबिया टॉप कर जाए गलती से ग्रुप, बिकॉज कोलंबिया के पास वो एक स्ट्रेंथ है. अगर आपको याद हो लास्ट ईयर का जो कोपा डेल रे हुआ था, वहां पे कोलंबिया और अर्जेंटीना का फाइनल हुआ था. कोलंबिया ने एक्चुअली ऑलमोस्ट अर्जेंटीना को डरा के रख दिया था. मेसी वॉज कराइंग, बट इवेंचुअली अर्जेंटीना वो फाइनल जीती. सो कोलंबिया एक ऐसी टीम है जो जिनको बड़े मैचेस का प्रेशर लेना, सोक इन करना आता है. सो सरप्राइज मत होना कि कोलंबिया अगर इस वन ऑफ दोज मैचेस में पोर्चुगल को अपसेट कर दे. सो हो सकता है अगर टाइम हो तो कोलंबिया टॉप भी कर सकती है और मे बी नॉट. सो बट स्टिल मैं काउंट इन करूंगा रोनाल्डो की पोर्चुगल को टू टॉप दिस ग्रुप बिकॉज ऑफ द फैक्ट ब्रूनो फर्नांडिस इज एट द पीक ऑफ हिज करियर. प्रीमियर लीग में काफी गोल्स मार के आ रहा है लड़का एंड असिस्ट की उसने असिस्ट इतने सारे दिए प्रीमियर लीग में विच लेड हिम टू सिक्योर दैट पोजीशन की जहां पे ही हैज दैट मोस्ट नंबर ऑफ असिस्ट इन द होल एंटायर हिस्ट्री ऑफ प्रीमियर लीग. दे हैव गॉट बर्नार्डो सिल्वा. सो पोर्चुगल नंबर 1 पे रखूंगा, कोलंबिया सेकंड पे रखूंगा, देन उज्बेकिस्तान थर्ड पे, देन फोर्थ पे डीआर कोंगो. ग्रुप एल में दे हैव गॉट पनामा, क्रोएशिया, घाना, इंग्लैंड. सो इंग्लैंड को अगर आप देखो, ये एक ऐसी टीम है जो मेरे को काफी पसंद है पर्सनली बिकॉज द प्लेयर्स दैट यूज टू प्ले फॉर इंग्लैंड, कोल पाल्मर, फिल फोडेन. इट्स नॉट दैट वो रिटायर हो गए यार, वो अभी भी खेलते हैं बट उनको सिलेक्ट नहीं किया गया. आई मीन डैम यार, हाउ कैन यू नॉट सेलेक्ट कोल पाल्मर हु वाज जस्ट कंपीटिंग लास्ट ईयर फॉर द बैलन डॉर. फिल फोर्डन इज ऑल्सो नॉट देयर. सो मेरे को दोनों प्लेयर्स काफी पसंद है, मैं इनको मिस करूंगा वर्ल्ड कप में. एंड एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस था या एक टैक्टिकल फेलियर था टॉमस टुकल की तरफ से, ये तो हमको वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद पता चल ही जाएगा. बट स्टिल द प्लेयर्स दे हैव गॉट लाइक बुकायो साका, हैरी केन, they give you immense strength in the midfield and Harry Kane is also there. So वो काफी फैक्टर आउट प्ले करने वाला है. एंड स्टिल जूड बेलिंगम इज ऑल्सो देयर यार, बेलिंगम भी अच्छा लगता है मेरे को. सो स्टिल इंग्लैंड के पास पोटेंशियल तो है, भले ही उनके पास दो अपने एक अच्छे प्लेयर्स नहीं है इस बार फीफा वर्ल्ड कप में, बट स्टिल दे हैव गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ सेट पीसिंग अटैकर्स इन देयर स्क्वाड. सो स्टिल मैं इंग्लैंड को काउंट इन करूंगा टू टॉप दिस ग्रुप. यहाँ पे नंबर 1 रखूंगा मैं. सेकंड पे मैं रखूंगा क्रोएशिया को बिकॉज ऑफ वन प्लेयर लाइक हु प्लेज फॉर क्रोएशिया, हिज नेम इज लूका मॉड्रिच. लूका मॉड्रिच का ऑब्वियसली लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है. इज वन ऑफ दो स्टार्स जो मेसी, रोनाल्डो, नेमार के साथ अलॉन्ग साइड लास्ट वर्ल्ड कप खेलने वाला है मॉड्रिच. एंड बहुत अच्छा प्लेयर है यार, काफी हम्बल है, काफी सॉलिडिफाइंग एटीट्यूड दिखाता है पिच में. काफी मैंने उसको अभी देखा नहीं है एक अग्रेसिव अप्रोच लेते हुए, एक एटीट्यूड अप्रोच दिखाते हुए. तो मेरे को मॉड्रिच काफी अच्छा लगता है. एंड बहुत बुरा लगता है जब मॉड्रिच की टीम क्रोएशिया बाहर होती है फीफा वर्ल्ड कप से. मेरे को याद है लाइक जब 4 साल पहले क्रोएशिया बाहर हुई थी राउंड ऑफ 16 या 16 या क्वार्टर फाइनल्स में आई गेस. सो आई वाज वेरी अपसेट फॉर लूका मॉड्रिच. सो आई डोंट नो, दे हैव गॉट अ गुड प्लेयर स्क्वाड. लाइक लोग बोलते हैं कि इनका पूरा स्क्वाड एक एक्सपीरियंस स्क्वाड है और इनके पास इनकी एक वीकनेस है एक्चुअली बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस दे हैव गॉट, क्योंकि सारे प्लेयर्स एक एजिंग साइड में हैं और सारे प्लेयर्स ऑफ द बेंच आएंगे. यंग प्लेयर्स इतने सारे हैं नहीं, बट स्टिल दे हैव गॉट वन सम ऑफ दोज गुड यंग प्लेयर्स आउट देयर. मेरे को नाम नहीं पता है उसका, याद नहीं आ रहा है, बट दे हैव गॉट वन ऑफ दोज प्लेयर हु इज वेरी यंग एक्चुअली, 17-18 ईयर्स का है. एंड वो क्रोएशिया को काफी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, वहाँ करवा सकता है वहाँ पे. और क्रोएशिया को मैं काउंट इन करूँगा सेकंड के लिए यहाँ पे. एंड नाउ यू कुड से थर्ड वुड बी घाना एंड पनामा विल बी 4. हम जानते ही नहीं पनामा कौन है यार, रखो इसको 4th पोजीशन पे. देन हम देखते हैं अपना ब्रैकेट 1 सेकेंड और दिस इज डन. सो नाउ अब हमको सिलेक्ट करना है टॉप बेस्ट 8 टीम्स जो थर्ड प्लेस करी है यहाँ पे. सो बेसिकली जितने भी यहाँ पे टीम्स आपको दिख रही हैं जो थर्ड पोजीशन पे हैं, उनमें से मेरे को टॉप 8 टीम सेलेक्ट करना है बिकॉज ये फीफा का एक्चुअली एक क्राइटेरिया है कि जो टीम यहाँ पे थर्ड फिनिश कर रही है उनमें से टॉप 8 टीम जो रहेंगी उनको देखा जाएगा कि बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू स्कोर गोल्स, कितनी सारी क्लीन शीट्स रही उनके पास, उसके बेस पे तो टोटल 8 ऐसी टीम रहेंगी जो क्वालिफाई करेंगी राउंड ऑफ 32 के लिए. तो अब वो सिलेक्ट करते हैं. सो सी शुड वी सिलेक्ट दिस
No. I would go with maybe. Should I go with? I think Senegal. Senegal will be one of those teams जो qualify करेगी मेरे ख्याल से top 8 में. Then Uzbekistan, I still believe I count in Uzbekistan. वहाँ पे भी कोई अच्छे attacking midfielders हैं. उज़्बेकिस्तान को second रखूंगा. Third maybe थर्ड विल बी स्कॉटलैंड. मैंने बोला था स्कॉटलैंड और मोरक्को में काफ़ी टफ कंपटीशन रहने वाला है. सो अगर थर्ड स्कॉटलैंड आती है तो स्कॉटलैंड डेफिनेटली उनके पास चांस रहेगा कि वो अपस्किल करे राउंड ऑफ 32 के लिए. एंड ओके दिस वन इज दो हो गई हैं. देन थी 4. फिफ्थ कुड बी शुड आई गो विद ईरान. ओके लेट्स गो विद ईरान. अगर अगर वो अच्छा कर लेते हैं कंपटीशन में. ओके ईरान के साथ जाते हैं. देन अल्जीरिया, घाना, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया. आई थिंक स्वीडन विल क्वालिफाई. स्वीडन विल डू गुड. देन यू हैव घाना, सऊदी, अल्जीरिया, आइवरी कोस्टा इज ऑल्सो देयर. आइवरी कोस्टा के साथ जाऊंगा. टोटल कितनी हो गई है हमारे पास टीम. अल्जीरिया इज ऑल्सो देयर राइट. should I go Saudi Arabia? Should I go Algeria? काफ़ी confusion हो रहा है मेरे को because Qatar is also there, Australia is also there. Saudi, Algeria. See ग्रुप में देखें तो अल्जीरिया के पास ये ग्रुप है राइट. I think I might go with actually. मेरे को लग रहा है मेरे को अल्जीरिया के साथ जाना चाहिए. Let's go with अल्जीरिया. Now let's see our bracket. ये हमारे पास bracket आ चुका है हमारा. And let's see our bracket. So ये हमारी टीम्स हैं. ओके ऑल राइट. सो अब हमारे पास ब्रैकेट रेडी हो चुका है. सो एंड क्या ब्रैकेट बना है यार ये. आई हैव गॉट जर्मनी, चेक, फ्रांस. एंड आपको शायद दिख नहीं रहा होगा मे बी साइड राइट साइड में, बट हमारे पास दो ब्रैकेट हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड. राइट साइड में वी हैव गॉट स्पेन, ऑस्ट्रिया इन दैट सेम ग्रुप. देन टर्की, स्वीडन. इफ मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँ अर्जेंटीना, यूरुग्वे है इस साइड में. यार क्या ब्रैकेट बना है, इंटरेस्टिंग है. काफ़ी एक्साइटेड हूँ. और जो एड्रेलिन रश मिलता है ना वाइल प्रिडिक्टिंग, वाइल डूइंग दिस थिंग. और ये मेरा फर्स्ट टाइम है एक्चुअली फीफा वर्ल्ड कप में जो मैं कर रहा हूँ. और मैं काफ़ी एक्साइटेड था. एवर सिंस 2022 फीफा वर्ल्ड कप मैंने सोच के रखा था कि नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप में आग लगा देनी है. आई विल बी ऑन फायर एंड आई विल बी कवरिंग द फीफा वर्ल्ड कप. सो मैं ये कर रहा हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ. थोड़ा लेट हूँ बट नो मैटर्स वॉट. ओके सो वी हैव द राउंड ऑफ 32. पहले हम राउंड ऑफ 32 को प्रोडिक्ट करेंगे. देन वील बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स, देन द बिग फाइनल. The first game of the round of 32, we have got Germany versus Czech Republic. I believe no doubt यहाँ पे हम जर्मनी को पिक करेंगे. And then France versus Scotland. No doubt in this too because France will beat Scotland and will proceed and meet Germany in the round of 16 वाले मैच में. यहाँ पे ओके नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है. देन वी हैव गॉट साउथ कोरिया वर्सेस स्विट्जरलैंड. एंड ये एक 2-2 वाला एक काफ़ी हैवी वेट क्लैश हो सकता है जहाँ पे दोनों एक अंडरडॉग टीम्स है जो यहाँ तक आ चुकी हैं राउंड ऑफ 32 तक. उन्हें अपना मेकअप वे किया है. सो मैं बोलूँगा आई बिलीव सी साउथ कोरिया के पास भी एक अच्छा स्क्वाड है, एक अच्छा यंग अटैक है उनके पास. मिडफील्ड अच्छी है उनकी, उनके गोलकीपर्स अच्छे हैं. स्विट्जरलैंड ऑन द अदर साइड दे ऑल्सो कंटेन सम ऑफ दोज स्ट्राइकर्स जिनको बॉल लेना आती है, जिनको क्रिएटिविटी ऑफर करना आती है फील्ड पे. बट यू नो व्हाट, आई विल गो विद साउथ कोरिया बिकॉज ऑफ वन मैन योंग सोन मिन. एंड वो उसका आखिरी वर्ल्ड कप होगा एंड आई विल बी काउंटिंग ऑन हिम कि वो गोल स्कोर करेगा और एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे लाके देगा फीफा वर्ल्ड कप में. सो साउथ कोरिया विल बीट स्विट्जरलैंड. देन वी हैव गॉट नेदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को. एंड इस मैच में यार क्या मैच है यार ये. शिट, इनका मैच कैसे सेटअप हो गया. ओके सो वी हैव गॉट नेदरलैंड्स एंड वर्सेस मोरक्को. अगेन हैवी बैटल एंड काफ़ी क्लोज जाने वाला है मैच. मे बी पेनल्टीज में जाए, आई डोंट नो. बट सी मोरक्को की टीम जो रही है 2022 वर्ल्ड कप में पोर्चुगल को अपसेट किया था, उनको बाहर किया था वर्ल्ड कप से. एंड अगेन नेदरलैंड्स की टीम में एक अच्छा उनके पास अटैक है, उनके पास वर्जिल वेन डाइक है और भी काफ़ी सारे अच्छे अटैकर्स हैं. एंड आई बिलीव नेदरलैंड्स विल बीट मोरक्को इस वाले मैच में. अगेन काफ़ी क्लोज जाएगा मैच.
बट आई बिलीव नेदरलैंड्स कर लेगी, नेदरलैंड्स जाएगी. सो देन वी हैव गॉट ब्राज़ील वर्सेस जापान. ओके, जापान का एक अच्छा कैंपेन रहेगा वर्ल्ड कप में. मेरे को लगता है जापान काफ़ी आगे तक प्रोसीड करेगी, बट दिस इज़ व्हेन जापान विल गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड कप एंड ब्राज़ील विल एंड देयर रन यहाँ पे, और ब्राज़ील इजीली वॉक अवे करेगी राउंड ऑफ 16 में. एंड वहाँ पे उनका मैच किसके साथ होगा, लेट्स सी, बिकॉज अब हमारे पास अगला मैच राउंड ऑफ 32 में है, इक्वाडोर वर्सेस नॉर्वे. एंड ये भी एक इंटरेस्टिंग मैच होगा, बट आई बिलीव नॉर्वे को मैच जीतना चाहिए. दोनों एक दोनों टीम्स आर नॉट दैट बिग ऑफ अ टीम. दोनों एक मल्टी नेशन टीम्स हैं जिनका पहला वर्ल्ड कप है. इक्वाडोर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने शायद लास्ट वर्ल्ड कप खेला था, बट नॉर्वे दे विल बी प्लेइंग देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप. दे हैव गॉट दैट स्टाइल, दे हैव गॉट दैट एक्साइटमेंट, एंड अर्लिंग हालैंड की क्रिएटिविटी डेफिनेटली माइट हेल्प देम एंड माइट प्लेस देम इन अ बेटर पोजीशन while they be playing the FIFA World Cup. So I believe Norway और इक्वाडोर. आई थिंक ये भी क्लोज गेम हो सकता है, बट आई थिंक नॉर्वे भी हालैंड करेगा, हालैंड ले जाएगा नॉर्वे को राउंड ऑफ 16 तक. देन वी हैव गॉट मैक्सिको वर्सेस आइवरी कोस्ट. एंड मैक्सिको का मैच मैंने देखा, मैक्सिको इज़ ऑल्सो वेरी गुड टीम, अच्छा टैलेंट पोजेस करती है, एंड उनके पास भी प्लेयर्स हैं जो क्रिएटिविटी टेबल पे लाके ऑफर करते हैं. बॉल पोजेशन मैक्सिको का काफ़ी अच्छा है, एंड अगेन होम एडवांटेज उनको मिलेगा, उनको टेरेन का यूजफुलनेस मिलेगी, एंड प्लेयर्स के लिए काफ़ी ईजी रहेगा टू एक्लेमेटाइज अपने आप को वहाँ पे पूरे स्टेडियम के अंदर. सो मैं बोलूँगा मैक्सिको विल बीट आइवरी कोस्ट. एंड देन यू हैव गॉट इंग्लैंड वर्सेस उज्बेकिस्तान, and then you have got England versus Uzbekistan. Again no doubt England easily अपना वे मेकअप करेगी यहाँ पे. एंड अगेन अब हमारे पास और भी राउंड ऑफ 32 के मैचेस हैं. उससे पहले मेरे को स्क्रीन यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, सो अब हमारे पास राइट साइड का ब्रैकेट आ चुका है, एंड देन द फर्स्ट गेम वी हैव गॉट इज कोलंबिया वर्सेस क्रोएशिया. एंड यू नो व्हाट, ये एक ऐसा मैच हो सकता है जहाँ पे वी माइट गेट अ बिग सरप्राइज, बिकॉज वी माइट सी कोलंबिया बीटिंग क्रोएशिया, एंड दैट वुड बी अ बिग अपसेट ऑफ दिस वर्ल्ड कप. बिकॉज क्रोएशिया, अगेन मैंने बोला है कि एक एक्सपीरियंस येट एक यंग टीम भी है, उनके पास मॉड्रिच का लास्ट वर्ल्ड कप है, एंड मैं चाहूँगा मॉड्रिच अच्छा परफॉर्म करे इस वर्ल्ड कप में. बट वुड वी बी सीइंग अ अपसेट इन दिस वाले मैच में? आई थिंक ये भी क्लोज मैच जा सकता है यार. ये एक ऐसा मैच हो सकता है जो 80-85 मिनट तक हमको पता भी नहीं चलेगा कि कौन जीत रहा है मैच, एंड देन वो लेट विनर आ सकता है किसी भी टीम के साइड से. बट पता नहीं, मेरे को ऐसे मेरी गट फीलिंग आ रही है कोलंबिया माइट बीट क्रोएशिया. यू नो व्हाट आई विल डू, I'll do this. I'm sorry, Luka Modric. I know this is your last World Cup, and we all love you. We all fans love you. And unfortunate that Croatia will get eliminated in the round of 32. काफ़ी मेरे को अपने दिल पे वो बैगेज लेके डिसीजन लेना पड़ा टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं चाहूँगा ये कि क्रोएशिया आगे तक जाए, एटलीस्ट सेमीफाइनल्स तक या क्वार्टर फाइनल्स तक प्रोसीड करे. बट दिस इज़ व्हाट इट इज़. मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कोलंबिया का एक काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट रहने वाला है, वो काफ़ी आगे तक प्रोसीड करने वाले हैं, एंड दैट्स वाई आई एम चूजिंग कोलंबिया टू बीट क्रोएशिया इस वाले मैच में. एंड वी लव यू लुका मॉड्रिच, लेजेंड. एंड देन नेक्स्ट मैच हमारे पास है स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया. कोई इसमें डाउट नहीं है, स्पेन विल इजीली बीट ऑस्ट्रिया यहाँ पे. एंड देन हमारे पास अगला मैच है टर्की वर्सेस स्वीडन. एंड I think Arda Güler will help Turkey make them proceed for the round of 16 वाले मैचेस में. तो यहाँ पे Turkey will beat Sweden. And the next game we have is Belgium versus Senegal. So again, Belgium I believe has that capability कि वो सेनेगल को यहाँ पे मैच में हराएं, बिकॉज उनके पास स्टार्स हैं, उनके पास मे बी गोल्डन जनरेशन नहीं है बेल्जियम की फुटबॉल वाली टीम, बट स्टिल दे हैव गॉट केविन डे ब्रुयने, दे हैव गॉट कोर्तवा, they have got Jermaine Doku. So players हैं उनके पास, ऐसी बात नहीं है. They midfield looks solid. आ सकती है. Jermaine Doku is very good in the 1-versus-1 situation, and they've got Lukaku as well. काफ़ी क्लिनिकल रहता है लुकाकू चांसेस बनाने के लिए. तो बेल्जियम यहाँ पे मेरे को लगता है जीतेगी ये मैच.
The next match you have got is Argentina versus Uruguay. So see, Uruguay you cannot count out because see they are built on passion, aggression, fearless approach के साथ players आते हैं. They have got Darwin Núñez, they have got Federico Valverde, but still I believe वो pressure lack करेंगे tough situations में जहाँ पे उनके पास वो वो माइंडसेट नहीं रहेगा प्लेयर्स का बिकॉज एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं है उनके पास यंग टैलेंट है, इमेंस टैलेंट है, बट स्टिल दे लैक दैट क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स जो पहले हुआ करते थे यूरोगे में. लुइस सुआरेज इज नॉट प्लेइंग फॉर यूरोगे नाउ. सो आई थिंक अर्जेंटीना विल इजीली बीट यूरोगे को यहाँ पे एंड कोई डाउट नहीं उसमें. सो मैं अर्जेंटीना को इसके साथ प्रोसीड करूंगा. देन यू हैव गॉट यूएस वर्सेस इजिप्ट. तो थैंक गॉड हमको यूएसए वर्सेस ईरान ने मैच देखने को मिल रहा है, वरना वर्ल्ड वॉर हो जाता है यार फुटबॉल फील्ड में. So okay, we have got USA versus Egypt. I think USA will beat Egypt because of that coach Pochettino, right? Then you have got Canada versus Iran and बच गए यार यहाँ पे ईरान उसके जस्ट नीचे है यूएसए के. ओके, सो कैनेडा वर्सेस ईरान. आई थिंक सी ईरान के साथ आई टोल्ड यू ऑल वो एक प्रॉब्लम रहेगी. इफ़ दे आर एबल टू काउंटर दैट प्रॉब्लम एंड वो सेटल डाउन हो जाते हैं यहाँ पे एंड वो अक्लेमेटाइज कर लेते कंडीशंस को और वो हैबिचुअल हो जाते हैं अप एंड डाउन जो उनको कंट्री आउट कंट्री इन करना पड़ेगा. सो दे माइट ऑल्सो बीट कैनेडा, बट हॉट फेवरेट्स कैनेडा नो डाउट. देन यू हैव गॉट पोर्चुगल वर्सेस अल्जीरिया. आई थिंक नो डाउट पोर्चुगल ये मैच जीतेगी एंड राउंड ऑफ 32 के लिए प्रोसीड करेगी. एंड अब हम बढ़ते हैं राउंड ऑफ 16 के साइड. ओके सो नाउ वी प्रोसीड टू राउंड ऑफ 16 और जो पहला मैच ही मेरे सामने है दैट इज जर्मनी वर्सेस फ्रांस. ओ माय गॉड यार, ये क्या मैच होगा. सी फ्रांस डेफिनेटली वर्ल्ड कप में इज अ डिफरेंट ग्रेवी, बट जर्मनी कैन दे डू इट, कैन दे मेक अ अपसेट इन दिस वर्ल्ड कप बाय बीटिंग फ्रांस. You know what? I think France कर लेगी यार. France is a different pedigree when it comes to World Cups and Mbappe है उनके पास, है वो कुछ भी कर सकता है. I'm going with France. Next match is South Korea versus Netherlands. I believe काफ़ी easy win होना चाहिए यहाँ पे Netherlands के लिए and they should be able to defeat South Korea यहाँ पे. So मैं Netherlands के साथ जाऊँगा यहाँ पे. Then you have got Brazil versus Norway. And this is the match when Brazil will end Erling Haaland का डेब्यू वाले वर्ल्ड कप का कैंपेन एंड वेयर ब्राज़ील विल बीट नॉर्वे. काफ़ी क्लोज गेम हो सकता है. आई थिंक ये 2-3 के स्कोर लाइन पे जा सकता है जहाँ पे हमें नेमार का एक गोल दिख सकता है वर्ल्ड कप में. बट दैट्स व्हेन थिंग्स गॉट चीजी बिकॉज हालैंड विल get knocked out of the World Cup, and that's what I say. Brazil will proceed, and the next game. Okay, so the next match we have is Mexico versus England, and obviously England will come as the favorites to win this match, and the players they have got, the star-studded lineup. They have Bukayo Saka, Jude Bellingham, they've got Harry Kane, so Declan Rice is also there. So players की कमी नहीं है इस टीम में, एंड डेफिनेटली एक अमेजिंग फिक्सचर है यहाँ पे. बट आई बिलीव इंग्लैंड विल बीट मैक्सिको. इंग्लैंड विल बीट मैक्सिको. और यहाँ पे आई गेस एक हैट्रिक भी आपको देखने को मिल सकती है, मे बी हैरी केन की साइड से और मे बी जूड बेलिंगम की साइड से. सो आई विल गो विद इंग्लैंड. एंड नाउ वी प्रोसीड विद द राइट साइड. लेट मी चेंज द लेआउट फर्स्ट. सो नाउ राइट साइड में हमारे पास है कोलंबिया वर्सेस स्पेन, and this is what you call a spicy knockout match because Spain, again, the world class talent they possess, and the midfield they've got, the young talents they have, and but still Colombia are no pushovers. उनके पास भी वो attacking mindset है, उनके पास भी वो players हैं. Luis Diaz they have got James Rodriguez. And that's the beauty of a FIFA World Cup, because one magic and the momentum changes just like that. And यहाँ पे एक वो ब्यूटी चाहिए रहती है, वो मे बी दैट कुड बी अ फ्री किक, दैट कुड बी अ गोल फ्रॉम इन लाइन, एंड उसके बाद थिंग्स गॉट डिफरेंट. सो ये हो सकता है, बट स्टिल ये भी काफ़ी गेम रहेगा. बट आई वुड बी बैक इन स्पेन बिकॉज डेफिनेटली वो एक ऑन पेपर साइड है जहाँ पे हम उसको बोलेंगे कि वो एक हॉट फेवरेट्स एंड दे शुड बी एबल टू बीट कोलंबिया. सो मैं स्पेन के साथ जाऊँगा. मे बी यहाँ पे हमको लमीन यमाल का काफ़ी ब्रिलियंट मैजिक भी देखने को मिल सकता है. सो आई विल बी गोइंग विद स्पेन इन दिस मैच अगेंस्ट कोलंबिया.
Now the next match we have got Turkey versus Belgium, and यहाँ पे I believe Turkey will get humble, and यहाँ पे Belgium will beat Turkey, so no problem with this. And now we've got Argentina versus USA. यानी क्या मैच होगा ना यार, आप सोचो, लियोनेल मेसी plays for Inter Miami which is a US based club, and सारे मैचेस मेसी अपने USA में खेलता है इंटर मायामी के लिए. सो और एक एक एडवांटेज भी रहेगा मेसी के पास, बिकॉज ऑफ द फैक्ट लास्ट 2 साल से मेसी इज बिंग ट्रेनिंग, डर्निंग ऑल दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग. सो वो गेम टाइम, वो जो एक चीज़ रहती है ना कि आप इतने ज़्यादा यूज टू हो जाते हो उस टेरेन में खेलने के साइड से, तो वो एक मेसी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस पूरे फीफा वर्ल्ड कप में, आई बिलीव. एंड यहाँ पे अर्जेंटीना विल बीट यूएसए एंड विल मार्क देयर वे टू द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2026. कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन वी हैव गॉट कनाडा वर्सेस पोर्चुगल. ओके थिंग्स आप समझ रहे हो ना कहाँ जा रही है, हमको अगला मैच क्या देखने को मिल सकता है, बट स्टिल अभी हम इस पर फोकस करते हैं. वी हैव गॉट कनाडा प्लेइंग पोर्चुगल. दिस इज अ मैच जहाँ पे रोनाल्डो का एक वो लेट विनर हमको देखने को मिल सकता है, एंड आई सेंस रोनाल्डो का 80th मिनट का या मे बी 90th मिनट का वो एक एडेड बोनस वाला गोल, जो कि एक काफ़ी क्रूशियल स्टेज पे आ सकता है, जहाँ पे पोर्चुगल विल बी कुड बी ऑन अ ब्रिंक ऑफ गेटिंग एलिमिनेटेड, और माइट बी ऑन अ स्टेज जहाँ पे उनको सर्वाइवल के लिए एक स्टेक चाहिए होगा. दैट्स व्हेन देयर मेन लीडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टेप्स इन एंड वो सेव करेगा and would make Portugal win this match, and then that's when Portugal will proceed to the quarterfinals of this FIFA World Cup. And wait हम बात करेंगे इस वाले मैच के लिए, वो हो गया, सेटअप हो गया, आई नो. ओके, सो दिस इज राइट देन. अब हम लेफ्ट साइड पे दोबारा आते हैं, बिकॉज वी हैव टू प्रिडिक्ट उस साइड वाले क्वार्टर फाइनल्स को. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज दिस लेआउट, आई नो इट्स इरिटेटिंग. Quarter final 1, France versus Netherlands. I mean, what a blockbuster match this could be if this happens. I mean, two of those top European nations competing against each other. Set pieces में काफ़ी अच्छी ability रहती है दोनों nations की यहाँ पे, and दोनों की style काफ़ी different रहती है. France again a world class talent, they have the pace and the ball control abilities the players inherit, and Netherlands के पास वो players हैं जो उनको वहाँ पे control out कर सकते हैं. फ्रैंकी de Jong वहाँ पे डेशैम्प्स है वहाँ पे, उसके बाद and definitely Virgil van Dijk है. And France will be heavily dependent on Kylian Mbappe to explode in this match, और not only in this match actually पूरे वर्ल्ड कप में फ्रांस को अगर अच्छा करना है तो किलियन एम्बापे एंड उस्मान डेम्बले पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहने वाली है फ्रांस नेशनल टीम की. एंड आई बिलीव फ्रांस शुड बी एबल टू विन दिस मैच, एंड बिकॉज एक क्वार्टर फाइनल्स वाला मैच है, एंड वो एक एक्सेस बैगेज समटाइम्स आपके माइंड में प्ले आउट करने लगता है कि वी आर प्लेइंग द नॉकआउट मैच, व्हाट इफ वी लूज. सो आई बिलीव अगर फ्रांस को मैच जीतना है, इवन दो फ्रांस आर द डेडलीस्ट फ्रंट रनर्स टू विन दिस वर्ल्ड कप, बट स्टिल आइड से वो एक वन टच की बात होती है, वन मोमेंट ऑफ मैजिक की बात होती है, जहाँ पे चीज़ें जस्ट गोज अवे फ्रॉम योर हैंड. सो आई बिलीव अगर फ्रांस को मैच जीतना है उनको पेनल्टीज में ले जाने से रोकना पड़ेगा, बिकॉज द मोमेंट ये मैच पेनल्टीज एक्स्ट्रा टाइम में जाता है, दैट्स व्हेन नेदरलैंड को यहाँ पे एज रहेगी मैच जीतने के लिए, बिकॉज हमने देखा है फ्रांस समहाउ पैनिक करती है पेनल्टी शूटआउट्स में. तो इसीलिए मेरे को लगता है अगर फ्रांस को जीतना है तो दे शुड विन बिफोर पेनल्टी, बिफोर एक्स्ट्रा टाइम एट से, बिकॉज अगर एक्स्ट्रा टाइम में जाता है तो नेदरलैंड्स आर द hot favorites to actually upset France. But still, I'll be going with France because I will be counting in Kylian Mbappe का touch there. He'll be a top player to watch out in this match अगर ये मैच होता है, because Mbappe के पास वो composure है, वो adaptability है कि वो कोई भी प्रेशर को सोक इन करना जानता है. Mbappe उसने यार हैट्रिक मार के रखी 2022 वाले वर्ल्ड कप में फाइनल में, तो मैं फ्रांस के साथ जाऊंगा यहाँ. The next match of the quarterfinals too, we have got Brazil versus England. Wow, god damn it, क्या मैच होगा ना यार ये वाला भी. एंड दिस इज वन ऑफ दोज मैचेस ना जहाँ पे आप ड्रीम करते हो, आपके पास एक हाथ में पॉपकॉर्न हो, दूसरे हाथ में आपके पास कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो, एंड you just tune into your TV set and just play this banger of a game. और एक ऐसा मैच होने वाला है. ब्राज़ील एक हैवी डिपेंडेंट साइड है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा रिलाई करेगी प्लेयर्स पे, जैसे कि विनीशियस जूनियर, नेमार जूनियर, एंड अगर नेमार स्टिल हैव गॉट दैट सेल्फ बिलीव दैट
दैट कंट्रोल ओवर हिज माइंड कि यार मैं कर सकता हूँ, ये मेरा लास्ट वर्ल्ड कप है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट मेरे को इंजरीज हो रही हैं, इफ ही इज एबल टू पुट हिमसेल्फ आउट ऑन द पिच पूरी कैपेबिलिटी में, सो आई बिलीव ब्राजील अच्छा करेगी, बिकॉज द मोमेंट हाफ टाइम के बाद प्लेयर्स टायर्ड हो जाएंगे, वो ऑन द बेंच जाएंगे, तो दैट्स व्हेन ब्राजील बिकम्स वीक, एंड वहाँ पे प्लेयर्स नए आएंगे, उनको वो अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, बिकॉज नेदरलैंड इंग्लैंड ऑन द अदर साइड, उनके पास वो प्लेयर्स अभी भी, उनके पास वो यंग टैलेंट है, उनके पास डिक्लन राइस है, उनके पास हैरी केन है। सो हैरी केन विल हैव दैट माइंडसेट कि वो हैरी केन को कुछ चलाना आता है प्लेयर्स को अपने, ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ लीडर माइंडसेट ऑफ अ प्लेयर, जिसको पता है अपने प्लेयर्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे मेरे को अपने सेट पीसेस बिठाना है, कैसे किस प्लेयर को ऑन द बेंच लेके आना है, किस प्लेयर को ऑफ द बेंच करना है। सो ही हैज़ दैट ही हैज़ गॉट दैट माइंड कैलकुलेट ऑल द गेम रीडिंग्स इस पूरे फीफा वर्ल्ड कप में। सो आई बिलीव इंग्लैंड have that touch with the amount of knowledge Harry Kane possesses, and Jude Bellingham का creativity also, and Declan Rice का possession also. So टफ गेम होगा यार, आई डोंट नो कौन जीतेगा, काफ़ी टफ है ये प्रिडिक्ट करना, बट यू नो व्हाट, आई माइट गो विद इंग्लैंड, लेट्स गो विद इंग्लैंड, लेट्स गो विद इंग्लैंड, या सो नाउ दिस इज डन, राइट? Okay, so now we have got Spain versus Belgium, the quarterfinal 3 match, and I believe Spain should be easily eliminating Belgium इस वाले मैच में, because स्पेन को मैं ट्रस्ट करता हूँ, उनके पास वो प्रोडिजी है, वो एक टैलेंट बैठा हुआ है उनके स्क्वाड में, लमीन यमाल करके, एंड वो उनको बहुत आगे तक लेके जाने वाला है, ना सिर्फ इस फीफा वर्ल्ड कप में, बट पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में जब स्पेन खेलेगी हमेशा, विच लमीन यमाल प्लेइंग इन फॉर स्पेन। सो आई बिलीव स्पेन विल बीट बेल्जियम। एक काफ़ी वन साइडेड मैच हमको देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हमको स्पेन का ऑल ओवर डोमिनेंस देखने को मिल सकता है, जहाँ पे पेड्री गोल करे, जहाँ पे लमीन यमाल हैट्रिक कर सकता है। सो आई बिलीव स्पेन विल इजीली बीट बेल्जियम। एंड नाउ आई while I scroll down, I see Argentina versus Portugal quarterfinals 3 at the FIFA World Cup 2026. Yes, it is happening. हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग ये हो रहा है, because I see this happening. Ronaldo versus Messi, and this is not just a quarter final. This is history यार। अर्जेंटीना प्लेइंग पोर्चुगल, मेसी और रोनाल्डो एक बार फिर से खेलते हुए हमको दिखेंगे अगेंस्ट ईच अदर, मे बी फॉर वन लास्ट टाइम, हु नोस, द लास्ट द टू ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स ऑफ आवर जनरेशन ऑन द बिगेस्ट स्टेज ऑफ ऑल, द फीफा वर्ल्ड कप. Messi and Ronaldo are both in what many expect to be the last World Cup appearances, making a possible showdown for the fans, to give them the kind of a adrenaline rush, that goosebumps, and अगर ये मैच हो जाता है ना तो इंटरनेट विल एक्सप्लोड. मैं तो बोलता हूँ इंटरनेट विल एक्सप्लोड एंटायरली, एंड जो माहौल बनेगा इस मैच जब ये होता है, दैट वुड बी समथिंग. जो मैच जो फुटबॉल फॉलो भी नहीं करते ना, ही विल बी ऑल्सो टॉकिंग कि यार कौन जीत रहा है, रोनाल्डो जीत रहा है, मेसी जीत रहा है आज. दैट्स काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जो सेटअप होने वाला है इस मैच में. So Argentina definitely comes in as a defending champions with Messi's magic and a team that knows how to win big tournaments, big moments. But Portugal, this might be Ronaldo's final shot at World Cup glory. And with Bruno Fernandes, Bernardo Silva and a stacked Portugal squad, they are more dangerous than ever. अगर आप देखो on paper Portugal का squad tough दिखता है अर्जेंटीना से भी ज़्यादा. But Portugal arrive with strong form and one of the most talented midfields in the tournament, while Argentina definitely will revolve around Messi's brilliance. अगर Messi is able to do well in this match, इस वाले मैच में अर्जेंटीना के पास वो अपर हैंड रहेगा टू अपसेट रोनाल्डो की पोर्चुगल में. एंड हु आई थिंक विल विन, वेरी टफ यार, वेरी टफ रहने वाला है मेरे लिए, बिकॉज एक तरफ एक वो प्लेयर है जिसको मैं इतना पसंद करता हूँ, लियोनेल मेसी, आई लव हिम, एंड एक तरफ ऐसा प्लेयर है जिसको मैं इतना हेट भी नहीं करता हूँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो. आई रिस्पेक्ट हिज लॉन्जेविटी, आई रिस्पेक्ट द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क ही हैज डन ऑल ओवर दीज ईयर्स. एट 41 ही इज स्टिल प्लेइंग एंड ही हैज गॉट दैट माइंडसेट ऑफ दैट अनफिनिश्ड बिजनेस इन हिज माइंड कि यार मेरे को ना वर्ल्ड कप जीतना है. उसने सब कुछ तो अचीव कर लिया यार, उससे बस 1000 गोल्स होने वाले हैं कुछ दिनों में, बट स्टिल दैट वो वर्ल्ड कप की ग्लोरियस ट्रॉफी है ना, वो उसको चाहिए, उसको वो टच करना है रोनाल्डो को. सो आई बिलीव रोनाल्डो का एक वो सेल्फ बिलीफ काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है इस पूरे टूर्नामेंट में हमको देखने को मिलेगा. जो रोनाल्डो अगर बिकॉज ही गॉट दैट हंगर यार, उसको अभी भी चाहिए. मेसी के लिए इट्स ओवर, इट्स लाइक
I have done it, but still, if I'm able to repeat it twice, it would be really good. It's like that for Messi, but अगर रोनाल्डो कर लेता है, that would be top thing, and very tough, but slightly Argentina, because 55-45 वाली चीज़ है, because of tournament experience and chemistry. But if Ronaldo gets one big moment or Portugal's midfield dominates, the game flips instantly, I believe. Who do I think will win this match? मेरे लिए काफ़ी टफ है मैच प्रिडिक्ट करना, बिकॉज एक साइड है लियोनल मेसी एंड देन अदर साइड यू हैव गॉट क्रिस्टियानो रोनाल्डो. आई एम अ बिग फैन ऑफ लियोनल मेसी एंड आई वुड वांट कि मेसी अपसेट ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली जो मैच हारेगा ही विल बी इन टीयर्स, हमको देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली लास्ट मैच है, लास्ट वर्ल्ड कप का, लास्ट वर्ल्ड कप है उन दोनों का. सो वो एक इमोशनल एंडिंग तो डेफिनेटली होगी. हूएवर विंस दिस मैच, फॉरगेट दैट थिंग, हमको एक आखिरी में एक इमोशनल ड्रामा डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बिकॉज जो टीम हारेगी यू डू डेफिनेटली फील फॉर दैट टीम. बट मेसी ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, रोनाल्डो इज स्टिल येट टू विन अ वर्ल्ड कप. सो इट्स नॉट लाइक दैट आई डोंट लाइक द फैक्ट कि मेसी अपना सेकेंड वर्ल्ड कप उठाए, बट इट्स मोर ऑफ अ फीलिंग कि आई डोंट वांट रोनाल्डो टू क्राई ट्वाइस. हमने वो 2022 वाले फीफा वर्ल्ड कप में देखा था हाउ रोनाल्डो वॉज क्राइंग, ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द डग आउट जब मोरक्को ने पोर्चुगल को बाहर किया था क्वार्टर फाइनल्स में. तो वो एक इमोशनल चीज़ थी मेरे लिए देखने के लिए कि यार रोनाल्डो बाहर हो गया. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट कि मेसी ने वर्ल्ड कप जीत रखा है, मेसी ने ऑलरेडी बैलन डॉर, उसके पास सब कुछ तो यार क्या बात कर रहे हो आप लोग. सो इसीलिए द फैक्ट मैं इसीलिए जाऊँगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ. आई बिलीव रोनाल्डो इज हैव दैट हंगर, उसके पास हम नहीं चाहते हैं रोनाल्डो दोबारा रोते हुए जाए, राइट, बिकॉज 2022 फीफा वर्ल्ड कप में हमने देखा था हाउ बैडली रोनाल्डो वो रो रहा था मोरक्को ने जब पोर्चुगल को बाहर किया था उस वाले वर्ल्ड कप में. सो हम नहीं चाहते वो रिपीट हो. एंड मेसी, इट्स नॉट लाइक दैट मेसी, आई डोंट वांट मेसी टू हैव दैट चांस ऑफ हैविंग हिज हैंड्स ऑन ए सेकेंड वर्ल्ड कप कॉन्सिक्यूटिवली, बट इट्स जस्ट अबाउट मैं नहीं चाहता रोनाल्डो अब अपसेट होके जाए. उसने लास्ट ईयर नेशंस लीग जीती एंड उसमें यार दैट मैन इज 41 यार, वो अभी भी compete कर रहा है टॉप लेवल पे, बिकॉज उसको वो हंगर है, ही इज दैट गॉट एक्स्ट्रा सेल्फ बिलीफ अपने आप में कि यार मेरे को वर्ल्ड कप जीतना है अभी. वो अभी कुछ दिनों में 1000 गोल्स भी कर लेगा, बट स्टिल उसको वो एक चीज़ है यार कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, बट यार मेरे पास वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं है. एंड आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, मे बी यू वुड से यार मेसी के पास है, मेरे पास नहीं है, मैं भी लेके रहूँगा, ये भी आप बोल सकते हो. बट अगर ये भी है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है यार. रोनाल्डो शुड बी एबल टू कम्पीट इन दिस मैच. एंड अगर ये पोर्चुगल को अच्छा करना है टूर्नामेंट पे, तो 41 ईयर ओल्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ समवन जिस पे पूरी पोर्चुगल की टीम हेविली डिपेंडेंट रहने वाली इवन एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ. ब्रूनो फर्नांडिस अगर वो अच्छा करेगा, डेफिनेटली पोर्चुगल हैव दैट चांस. एंड अर्जेंटीना, आई बिलीव पोर्चुगल विल विन दिस मैच. पोर्चुगल विल अपसेट लियोनल मेसी की अर्जेंटीना एंड विल मेक देयर वे फॉर द सेमीफाइनल्स. बट एक चीज़ बोलूँगा ये, इसको मैं प्रोसीड करने से पहले कि फॉरगेट अबाउट टैक्टिक्स, फॉरगेट अबाउट स्टैट्स, दिस इज इमोशन. ये आप देखने वाले हो रोनाल्डो और मेसी को एक आखिरी बार कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर. इन दोनों ने फुटबॉल रन किया है उस डेकेड में, पास्ट डेकेड में. इन पे न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स रन करते थे उस टाइम पे. सो इट वुड बी अ वेरी इमोशनल थिंग. सो पोर्चुगल इट इज हु इज गोइंग टू द सेमीफाइनल्स. तो अब हमारे पास आ चुकी है हमारी सेमीफाइनल्स वाली टीम. पहला सेमीफाइनल हमारे पास है फ्रांस वर्सेस स्पेन. वाओ यार, व्हाई आई हैव टू डू दिस. सो मैन, फ्रांस स्पेन, मैन क्या मैच होगा ना यार. अभी अगर हम देखें सेमीफाइनल्स का बिग स्टेज, दैट बिग प्रेशर, दैट बिग डे, कौन अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना जानता है उस बड़े ओकेजन में. एक ये सिर्फ सेमीफाइनल नहीं है, एक फुटबॉलिंग फिलोसफीज का कोलिजन है एक्चुअली. फ्रांस और एक साइड स्पेन. एक तरफ स्पेन है हु who knows positional dominance, control, patience. They don't just play football, they manipulate space. Pedri और Rodri जैसे प्लेयर्स गेम को डिक्टेट करते हैं, टेम्पो कंट्रोल करते हैं. They make you suffer without the ball. दूसरी तरफ फ्रांस, प्योर एफिशिएंसी. एंड फ्रांस का 70% पोजेशन नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ एक ट्रांजिशन, एक मूवमेंट और एक एम्बापे रन चाहिए टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय अपोजिशन.
and that's what will be happening here. And they are ruthless in moments and tactically अगर देखो this game tactically अगर आप देखा जाए एक्चुअली, तो ये this game midfield में जीता या हारा जाएगा, और स्पेन विल ट्राई टू सफोकेट फ्रांस विद पोजेशन एंड, लेकिन फ्रांस का डायरेक्टनेस और एथलेटिक टैक्टिकली अगर देखो द गेम विल मिडफील्ड में टैक्टिकली अगर देखो मिडफील्ड विल डिसाइड कि कौन ये मैच आगे प्रोसीड करते हुए जीत सकता है। एंड फ्रांस स्पेन विल ट्राई टू सफोकेट फ्रांस एक्चुअली विद पोजेशन, लेकिन फ्रांस का डायरेक्टनेस और एथलेटिसिज्म कैन पनिश स्पेन इन सम टाइम्स द सेकेंड दे ओवरकम इट। एंड ऑनेस्टली नॉकआउट फुटबॉल में एस्थेटिक्स मैटर नहीं करती है, एफिशिएंसी करती है। एंड द वो मैटर करता है कि कौन अपने नर्व्स को कंट्रोल करना जानता है ऐसे बिग ओकेजन्स में। सो एंड वही डिफरेंस सेमीफाइनल डिसाइड कर सकता है। सो प्रेडिक्शन की अगर आप बात करो तो माई हार्ट सेज क्लासिकली एक क्लासिक टाइम एक्स्ट्रा टाइम तक जा सकता है मैच, पेनल्टीज में भी जा सकता है अगेन, बट स्लाइटली फ्रांस को वो एक एक्स्ट्रा बोनस रहेगा बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स दे हैव गॉट एम्बापे जो शायद मे बी अपना सेकंड कॉन्जिक्यूटिव गोल्डन बूट जीते इस वर्ल्ड कप में, दे हैव गॉट उस्मान डेम्बले, दे हैव गॉट दैट प्लेयर माइकल ओलिजे एज वेल। तो प्लेयर्स की ब्रिलियंस डेफिनेटली मैटर करती है यहाँ पे, एंड इंडिविजुअल ब्रिलियंस डेफिनेटली वो मैच कभी भी चेंज कर सकती है। सो फुटबॉल का चेस मैच बट विथ फायर, मैं ये बोलूँगा इस मैच को। एंड आई डोंट नो यार, जस्ट बिकॉज फ्रांस के पास वो एक्सपीरियंस है टू प्ले दैट बिग बिग मैचेस, उन्होंने करके रखा है यार। 2010 वर्ल्ड कप जीता था उनने, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था उन लोगों ने। सो और ऑलमोस्ट सेम टीम ही आ रही है यहाँ पे भी। सो अगेन मैं फ्रांस के साथ जाऊंगा यार। सो इट्स फ्रांस फॉर मी हु विल बी डिफीटिंग स्पेन इस वाले मैच में। या फ्रांस आ चुकी है अपने कॉन्जिक्यूटिव दूसरे फाइनल्स में, एक्चुअली कॉन्जिक्यूटिवली अपने तीसरे फाइनल में यार। 2018 फाइनल्स, 2022 फाइनल्स, 2026 फाइनल्स। व्हाट अ बैंगर ऑफ अ टीम ये फ्रांस की टीम है यार। पहले हम बात करते हैं सेकेंड सेमीफाइनल्स की। दे हैव गॉट इंग्लैंड वर्सेस पोर्चुगल। वाओ 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 वाओ। एक तरफ इंग्लैंड है, गोल्डन जनरेशन टैग के साथ आती है, वर्ल्ड क्लास स्क्वाड डेप्थ है, एलीट यंग कोर है उनके पास, बट जब प्रेशर मोमेंट्स आते हैं क्वेश्चंस भी उठते हैं, एंड कि क्या आर दे केपेबल ऑफ soaking that big match pressure on some certain of days, and can they actually deliver on the biggest stage? And दूसरी तरफ you've got Portugal, maybe not the loudest team in the tournament, but definitely one of the most balanced and I would say what टैक्टिकल डिसिप्लिन वाली टीम, इंटेलिजेंट बिल्टअप करने वाली टीम, एंड प्लेयर्स जो टाइट स्पेसेस में गेम को अनलॉक कर सकते हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं उनके पास। एंड मुझे लगता है काफ़ी एक की बैटल मिडफील्ड में होने वाला है। एंड अगर आप देखो तो एक इम्पॉर्टेंट गेम होगा। एंड अगर इंग्लैंड हाई इंटेंसिटी और वर्टिकल फुटबॉल खेलेगी, दे कैन हर्ट पोर्चुगल वेरी बैडली। लेकिन अगर पोर्चुगल टेम्पो डिक्टेट कर गया और गेम को स्लो कैलकुलेटेड रिदम में ले गया, देन इंग्लैंड कुड एक्चुअली स्ट्रगल। और फिर अगेन यू गॉट इमोशनल एंगल भी है यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, मे बी द फाइनल चैप्टर ऑफ एन आइकॉनिक स्टोरी, प्रेशर मैसिव, स्टेक्स इवन बिगर। सो आई डोंट नो यार इस मैच में क्या होगा। माई हार्ट सेज कि मैं पोर्चुगल बोलूँ, बट दिमाग बोल रहा है कि दिस कुड बी इंग्लैंड्स ईयर। टफ है यार, बट वेरी बैडली आई वांट रोनाल्डो जीते वर्ल्ड कप। और वो टीम है उनके पास, ऐसा नहीं है कि उनके पास टीम नहीं, उनके पास नूनो मेंडेज उनके पास, बर्नार्डो सिल्वा उनके पास, ब्रूनो फर्नांडेज है, दे हैव गॉट टॉप टीम यार। सो it's again tough for me. Whom should I go for? But वितीनिया भी यार उनके पास, PSG के साथ उसने अभी UCL जीता था। देन इंग्लैंड को देखता हूँ तो देव को डायरेक्ट बेलिंगम, केन का क्लिक है उनके पास। एंड अगेन अगर दोनों एकदम ऑन द गिवन डे दोनों फॉर्म में आ गए, दे कैन डेफिनेटली पनिश एनीवन इन ट्रांजिशंस। इंग्लैंड आर स्टिल अमंग द टूर्नामेंट फेवरेट्स बिकॉज ऑफ द स्क्वाड डेप्थ एंड अटैकिंग क्वालिटी दे पोजेस।
Ronaldo's final chapter for the World Cup. Football has a weird habit, right, of creating storylines. Even a lot of brackets are imagining Portugal going very deep in the tournament and they might actually winning the FIFA World Cup. So I don't know यार ये क्या होगा. Will Ronaldo be able to get this done, get the job done? मैं सच में बहुत 50-50 हूँ यार. मैं मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किस पे मैं क्लिक करूँ. मैं इंग्लैंड पे जाऊँ, मैं पोर्चुगल पे जाऊँ. इट्स रियली 50-50 यार. मेरे को समझ नहीं आ रहा. आई थिंक इस मैच में आपको हैरी केन की मास्टर क्लास दिख सकती है. एंड इस मैच में पोर्चुगल के लिए एक राफेल लियाओ का गोल आ सकता है, या फिर मे बी कोई ऐसा प्लेयर गोल कर सकता है जो ऑफ द बेंच आके एकदम लेटर ऑन द 80 मिनट या 98 मिनट में गोल करे और पोर्चुगल को रिकवर करे. पेनल्टीज में क्या गेम जा सकता है, मे बी आई डोंट नो. नहीं जाएगा मे बी, या फिर स्टॉपेज टाइम के जस्ट पहले ख़त्म हो जाए गेम. यार इसको ना डिफरेंट होना चाहिए था. मेरे को ना इंग्लैंड भी पिक करना है. आई डोंट नो यार, ऐसा होना चाहिए था. स्पेन और इंग्लैंड होना चाहिए, तो मैं इंग्लैंड पिक करता. फ्रांस और पोर्चुगल में पोर्चुगल को पिक कर लेता. फिर फ्रांस और इंग्लैंड को फाइनल करा देते हैं. बट यार अब तो मैं सेमीफाइनल में फंस चुका हूँ यार. आई डोंट नो व्हाट टू से. मैं एक्चुअली बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ. होम शुड आई गो विद यार? Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Ronaldo, Rafael Leao, Pedro Neto, Diego Jota is also an emotional factor. कौन जीतेगा? You know what? Let's go with Portugal. I know बहुत स्टीरियोटाइप कर रहा हूँ मैं. सब बोल रहे हैं पोर्चुगल को, तो मैं भी कर रहा हूँ पोर्चुगल. बट आई डोंट नो यार, मेरे को लग रहा है पोर्चुगल कर लेगी. पोर्चुगल विल डू इट. एंड नाउ हियर वी आर फॉर द फाइनल्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2026. वी हैव फ्रांस. यू नो व्हाट, मैंने पोर्चुगल कर दिया था, बट आई थिंक इंग्लैंड विल अपसेट पोर्चुगल. एंड दिस इज व्हेन पार्थ ग्वार्डियोला इज प्लेइंग हिज बिगेस्ट ऑफ बिगेस्ट कार्ड्स. जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ स्टोरी एकदम से शिफ्ट हो जाएगी, वेयर हैरी केन की इंग्लैंड विल बीट क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्चुगल इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप. एंड हमें एक सैड एंड दिखेगा रोनाल्डो का, जहाँ पे अगेन हमें देखने को मिल सकता है दैट रोनाल्डो विल बी अपसेट एंड ही विल बी गोइंग टूवर्ड्स दिस हिज डग आउट, और ही विल बी नॉट बी एबल टू फिनिश हिज स्टोरी इन अ वे ही वांटेड टू, और पोर्चुगल बाहर हो जाएगी वर्ल्ड कप. पता नहीं बहुत क्लोज था मेरे लिए. 50-50 था, बट मेरे को लग रहा है इंग्लैंड कैन डू इट. इंग्लैंड विल डू इट दिस टाइम. एंड नाउ वी आर इन द फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप 2026 विद पार्थ ग्वार्डियोला स्पीकिंग आउट फैक्ट्स. एंड क्या बॉल नॉलेज डिलीवर कर रहा हूँ ना मैं. आई होप पार्थ बहुत प्राउड हो मेरे पे. अगेन तो वी हैव गॉट फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड. अब ये एक फाइनल नहीं है, ये एक स्टेटमेंट मैच है एक्चुअली. When you see France, tournament specialist हैं, they know how to survive pressure में, suffer in games, और फिर एक decisive moment में पूरा मैच स्टील कर लेना उनको आता है करना. क्लिनिकल हैं, रूटलेस हैं, एफिशिएंट हैं. दूसरी तरफ you've got England, probably their most balanced generation in recent years. टैलेंट तो हमेशा से रहा है इंग्लैंड की फुटबॉल टीम में, बट अब स्ट्रक्चर भी है, मेच्योरिटी भी है, और बिग स्टेज कॉन्फिडेंस भी है. This feels like England's real opportunity to finally silence the "it's coming home" memes. एंड बिकॉज हम देखते आ रहे हैं टाइम से वो इंटरनेट पे मीम बनती है कि इट्स फाइनली कमिंग होम, इट्स कमिंग होम. तो एक उस पर भी फुल स्टॉप लगाएगी इंग्लैंड फुटबॉल टीम जब वो वर्ल्ड कप जीतेगी, अगर वो जीतते हैं. सो टैक्टिकली बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप है. इंग्लैंड पोजेशन और कंट्रोल्ड बिल्डअप पे रिलाई करेगा, लेकिन फ्रांस इस ट्रांजिशनल फुटबॉल इज टेरिफाइंग.
एंड अगर इंग्लैंड डिफेंसिव लाइन थोड़ी भी एक्सपोज होती है, एम्बापे विल पनिश। एम्बापे फिर वो वो रन, एम्बापे के पास वो रन ऑफ फ्लेवर है जहाँ पे ही विल जस्ट पनिश फ्रांस एंड ही विल मेक फ्रांस विन दिस वर्ल्ड कप एज वेल। सो बट फाइनल्स में टैक्टिक्स से ज़्यादा नर्व मैटर करती है। एंड बट फाइनल्स में टैक्टिक्स से ज़्यादा नर्व मैटर करती है। हु कोड एब्जॉर्ब द बिग मैच डे प्रेशर, वो कैसे हम अपने आप को कंट्रोल और काम रख सकते हैं उस मैचअप सिचुएशन में। तो कौन प्रेशर को अब्जॉर्ब करेगा, कौन बिग ओकेशन को हैंडल करेगा, दैट्स द रियल क्वेश्चन। प्रिडिक्शन, this screams a kegi high intensity final, maybe even decided by one moment of brilliance. एंड ऑनेस्टली अब ये फाइनल हुआ तो फुटबॉल फैंस फीस्ट करेंगे एंड लेगेसी डिफाइनिंग नाइट होने वाली है ये वाली। अगेन अ टफ वन फॉर मी, फॉर द वंस हु नो, एम्बापे इज़ माई फेवरेट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अगर आप देखो, मैं बहुत पसंद करता हूँ किलियन एम्बापे को, एंड कमाल का बंदा है यार। इज़ 27, स्टिल मैं मानता हूँ वो उसने अपने करियर में अंडर अचीव किया है, उसको और बहुत सी चीज़ें अचीव करना बाकी है अभी। एंड बैलन डोर अभी तक उसको 2 तो एटलीस्ट मिल जाने चाहिए थे, बट उसके पास एक भी बैलन डोर नहीं है। क्या बंदा है यार एम्बापे, ये उसका कॉन्जिक्यूटिवली 3rd फाइनल होगा और एक जीतता है। अगर ये हारता है तो अ सैड स्टोरी फॉर हिम। ही इज़ 27 एंड मेरे को लगता है एम्बापे ने इवन एट दिस स्टेज काफ़ी कुछ अंडर अचीव किया है। शुड हैव बीन एबल टू ग्रास्प इवन मोर ट्रॉफीज, इवन मोर इंडिविजुअल थिंग्स। उस अपने कैबिनेट में उसको ऐड कर लेना चाहिए था इस एज तक। उसके पास अभी तक एक भी बैलन डोर नहीं है, बट ही इज़ अ टॉप गाय, लेजेंड है अब फुटबॉल का अभी करंट वर्ल्ड में। बट मेरे को लगता है इंग्लैंड विल डू इट यार। England will do it. England will beat France in the FIFA World Cup 2026 to clinch that golden trophy and to put the end to all those years जो इतने सारे सालों से जोक्स चल रहे थे ना, it's coming home, it's coming home. It will be finally a redemption time for England football team, and imagine this, a generation full of pressure, expectations, criticism, and then finally delivering on the biggest stage. Jude Bellingham becoming the face of a new era. Harry Kane lifting the trophy after years of heartbreak over स्पीकर्स का एक टैग लगता था। ये सिर्फ ट्रॉफी नहीं होगी, एक लेगेसी शिफ्ट होगा, एक नया अप स्किल एक मोमेंटम अचीव करेगी इंग्लैंड फुटबॉल टीम यहाँ आने वाले टाइम में से। एंड फ्रॉम ऑलमोस्ट देयर टू वर्ल्ड चैम्पियंस, दिस वुड बी इंग्लैंड। एंड पूरे वेम्बली से लेकर इंग्लैंड तक एब्सोल्यूट सीन्स होने वाले हैं। फुटबॉल फाइनली कमिंग होम एंड it's England guys, it's England who will be winning this year's FIFA World Cup 2026. एंड जूड बेलिंगम का एक अच्छा गोल आएगा फाइनल में। एम्बापे विल ट्राई हिज बेस्ट, लास्ट एज तक एम्बापे विल बी ऑन हिज ड्राइव, ऑन हिज नर्व कि यार मैं फ्रांस को क्वालिफाई करवा के ही रहूँगा। आपको याद होगा ना 2022 वर्ल्ड कप में क्या हुआ था। He literally, that man literally gave us Argentina fans heartbreak. Not Argentina fans, ने पूरे वर्ल्ड को heartbreak दे दिया था यार। You guys remember right what happened in 2022 FIFA World Cup? उसने पूरी दुनिया को हार्ट अटैक दे के रखा था यार। इवन फ्रांस के जो फैंस थे उनको भी कि भाई जिता रहे हो या नहीं जिता रहे हो। हैट्रिक मार के दिया था उसने 2022 FIFA वर्ल्ड कप में। तो दैट वाज एम्बापे फॉर यू। बट अनफॉर्चुनेट है एम्बापे के लिए, बिकॉज इट वुड बी जूड बेलिंगम्स नाइट इन द फाइनल्स, जो शाइन करेगा यहाँ पे एंड एपिक गोल्स रहेगा। एंड एम्बापे विल ट्राई हिज अगेन बेस्ट ट्राई करेगा, बट इट वुड बी जूड बेलिंगम एंड डेक्लन राइस एंड हैरी केन जो इंग्लैंड को अपना वर्ल्ड कप जिताएंगे यहाँ पे। एंड ये भी यार, सो इट्स ओवर, सो वेल इट्स डन। फर्स्ट असाइनमेंट मेरा कंप्लीट हो चुका है जो मेरे को पार्थ बॉस ने दिया था। एंड द ब्रैकेट हैज़ बीन कंप्लीटेड, द प्रेडिक्शंस हैव बीन मेड, द हॉट टेक्स हैव बीन डिलीवर्ड, एंड समवेयर आउट देयर at least a few football fans are probably typing essays explaining why I know absolutely nothing about football, but honestly this was fun यार। मेरे को मज़ा आया करने में, मेरा फर्स्ट टाइम था
और मैंने बार बार बोल रहा हूँ मैं इस वीडियो में, मेरे को 2022 फीफा वर्ल्ड कप के बाद ये चीज़ करनी थी एंड मैंने ये चीज़ करी। आई एम सो हैप्पी। अब मेरे को बस इसको एडिट करना है, देन पार्थ बॉस विल बी वेरी हैप्पी। एंड एडिटिंग तो आई डोंट नो किसको करना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्टली पार्थ बॉस ही अपने पूरे प्रोजेक्ट्स और वीडियोस मैनेज करते थे, वो खुद एडिट करते थे। बट आई एम नॉट दैट गुड ऑफ अ एडिटर। आई विल ट्राई माई हैंड्स ऑन इट बिकॉज पार्थ बॉस इज़ नॉट वेल, ही इज़ बिजी एंड मेरे को असाइनमेंट दिया गया, तो आई ऑल्सो नीड टू फिगर आउट कि एडिटिंग कैसे होती है। माई हैंड्स ऑन कीबोर्ड वुड बी फ्लरिशिंग ऑल ओवर द की पैड कि कैसे करूँ एडिटिंग एक्चुअली में। सो एक टफ चीज़ रहने वाली, बट आई वुड फिगर इट आउट समहाउ एंड आई डोंट नो वैसे कैसे करूँगा। बट फॉर दोज हु डोंट नो, आई एम नॉट द गाय हु यूजुअली रन्स दिस चैनल। आई एम पार्थ ग्वार्डियोला। ये चैनल पार्थ सिंह करता है रन अपने उसके ऊपर, बट मैं नहीं करता हूँ चैनल एडिट। मैं पार्ट टाइम करने आया हूँ, तो मेरे को मत कुछ बोलना कोई, ठीक है ना। देन आई वॉज कॉल्ड आउट ऑफ एन इमरजेंसी एडिटिंग पे मेरे को ध्यान देना पड़ेगा आई बिलीव, एंड कॉल्ड इन एन emergency ड्यूटी बिकॉज द फीफा वर्ल्ड कप ओनली कम्स वंस in 4 years and apparently Parth boss is not well, decided somebody had to take responsibility, so उन्होंने मेरे को call out किया यहाँ पे and so here I was and genuinely I hope I did justice to my responsibility। Parth boss खुश होंगे जब उनको असाइनमेंट देखने को मिलेगा एंड मे बी अभी तो रात के 4 बज रहे हैं। मैंने स्ट्रेट आउट 3 घंटे तक 2-3 घंटे तक एक्चुअली ये वीडियो पूरा एनालाइज किया, राइट किया पूरा सब कुछ। 3 घंटे से बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, भूख भी लग रही है बट कुछ है नहीं खाने को, सो आई वुड बी स्लीपिंग नाउ एंड पार्थ बॉस तो सो रहे होंगे मे बी। सो आई होप द फैंस एन्जॉयड दिस वन एंड मेरे को तो बहुत मज़ा आया करने में एंड स्पेशली I hope the cricket audience somehow survived this 2 hour of football video because I guess ये 2 घंटे का बन जाएगा मे बी, आई डोंट नो कितने, 1.5 hours से तो ज़्यादा ही होगा because this is a channel that usually spends half of its life discussing CSK. So but before I leave, Parth boss gave me one instruction. He said कि यार पार्थ ट्राई करना कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप तो तुम कवर कर लो। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं कुछ एक कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ अपने साइड से, एक कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, बट आई विल ट्राई। पार्थ बॉस को मत बताना, ही वुड फायर मी, बट एटलीस्ट कवर मैं हाफ करने का ट्राई करूँगा इफ़ थिंग्स गो अकॉर्डिंग टू प्लान, इफ द बॉडी अलाउज। या एक रियलिटी है, बट यू विल प्रोबेबली बी सीइंग अ लॉट ऑफ मी इन कमिंग डेज एंड अपने आप को पुश करना पड़ेगा ये चीज़ करने को मेरे को, बिकॉज मेरे को करना था। सो या कैरेक्टर ब्रेक कर रहा था, आई वोंट बी ब्रेकिंग द माई कैरेक्टर। सो ग्रुप स्टेज, नॉकआउट्स, क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स, I'll be here. I'll be straight up on this channel and Parth Guardiola will be right here on this channel and तब तक के लिए आप भूल जाओ कि क्रिकेट स्लीर है, फुटबॉल स्लीर बन चुका है, बिकॉज जब तक मेरे पास का कंट्रोल है you will be seeing a lot of football content on this channel at least till FIFA World Cup। बाकी उसके बाद मेरी जॉब अपग्रेड होती है, मैं फायर होता हूँ, मेरे को नहीं पता, वो पार्थ बॉस पे डिपेंड करता है एंड आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। सो दैट्स मी, पार्थ Guardiola signing off from this video. I'll be seeing you in the next one. Till then, bye, take care, I'll see you in the next one, bye.